अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? कोई चैट पे जी, टाइप जी, कर आ रही है। सकते? ओके, बेहतरीन बेहतरीन। सो आई गेस मोर आर ज्वाइनिंग और शुड वी स्टार्ट? यहाँ पे अजान हो रही है, अराउंड 5 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं, और लेट्स वेट फॉर सम टाइम। व्हाट डू यू से? आई थिंक भी 19 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट सम टाइमर ऑन माई स्क्रीन। Stop watch timer. Let me set it to. Let's wait for a few more minutes. What do you say? 10 minutes or I guess, yeah, 10 minutes. okay? मैं इसको सेट करता हूँ। Share screen. Entire screen. Okay, I guess the timer is visible. So let's wait for the attendees to join. फिर मैं start करता हूँ presentation. I think all guys are joining.
Okay, so we'll do the introduction and talk about the collaborations first, and then you can start your session. G sounds okay. Sounds good. Let's wait for the Okay. timer for 3 minutes. Okay. Starting, okay? Am I audible? Okay, I'm audible. I can see it on the left side. Okay, जी अस्सलाम वालेकुम. I guess आप लोग start करें intro. Then I will start from my slides and sessions. Uh, Okay. Starting, I or someone else. Okay. So, can you hear me? Yes, we can hear you clearly. Okay. So, hello everyone. How are you guys? I hope you're all doing great, and I hope कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा.
I am Aisha Javed from the management team of GDSC IUV. Welcome to our Tech Career Mapping event hosted by the Google Developer Student Club IUV in collaboration with other GDSCs. Um, so a few weeks ago, we asked our community members about the topic they want to know more about and they're interested in, and we realized that the majority of members, they wanted to talk to the experts, and they wanted to know more about the career paths and roadmaps and different technologies. So here we are with this event on popular demand. Make sure to watch it till the end so that you don't miss out anything. We have some amazing industry experts with us as our guest speakers today. So, but before moving on to that, let's first talk a little bit about the Google Developer Student Club. I'm sure आप में से ज़्यादातर लोग familiar होंगे हमसे. So GDSC is basically a program that is run by Google and supported by the Google developers to basically empower students so that they can become better developers and to help them solve real world problems using technology. GDSCs are basically a student-led community that organizes, various events, workshops, and activities throughout the year uh, to provide a platform for students where they can, collaborate and learn from each other. Um, so you can join and connect with GDSC IUB. We have shared links to our website and social media handles: Instagram, Facebook, and LinkedIn. You can follow us on our social media pages for the latest updates. Um, Now, moving on to collaborations, we have collaborated with GDSC, PAF Institute of Applied Sciences and Technology, uh, University of Management and Technology, um, City University of Science and Information Technology, Peshawar, Fatma Jinnah Women University, Bahria University, Lahore, Khwaja Farid University of Engineering and Information Technology, and ACM IUB chapter. Thank you so much to all the GDSC chapters and especially the leads, Aadil, Hasib, Iman, Aman, Wasim, and all the leads. जिनके बगैर जो है ये पॉसिबल नहीं था. वी होप कि इस तरह के और collaborations हमें देखने को मिले. um, we are excited to bring you this event and hope that it will provide valuable insights and guidance on mapping your tech career. Thank you so much for joining us. Now, without any further ado, let's move on to our first guest. We have Abdul Fahad with us, who is a highly skilled and experienced cloud solutions architect with a strong focus on Google Cloud, AWS, and Azure platforms. With over 3 years of experience in architecting cloud solutions for various business verticals, Abdul Fahad has developed extensive experience in infrastructure, virtualization, and security deployments. He's a multi cloud engineer at Affinity. He'll be sharing his experiences and tips on how to map your tech career. Thank you so much for joining us. Um, Thank you for brief introduction, Aisha, I guess. Yeah. So, it's Abdul Fahad here. Assalamu alaikum to all, and welcome to the session. I guess most of the here they are students based in the university, right? yes. So, okay, sounds good. So मैं chat वगैरह भी देख रहा हूँ. I'm on dual LCD. मैं साथ में कोई भी issue हो, challenge हो, तो आप chat में कह सकते हैं. और I think both operators in the meeting they can also unmute themselves. So my name is Abdul Fahad and I belong to Lahore, Pakistan. और मेरा background जो है, मैं let me share my screen as well. Window, okay, this one. So I'm not sure about how you spell the university, so I write you from the correct side. Let me this one. I think this full screen now. ठीक है? इसको मैं oops. From beginning इसको मैं नीचे करता हूँ. ठीक है, available नहीं है. So my full name is Abdul Fahad और मैं I think full screen है slide. ये half screen में आ रही, कैसे आ रही है? स्टक तो नहीं है?
फुल स्क्रीन नहीं है। फुल स्क्रीन नहीं है, दैट्स स्ट्रेंज। फ्रॉम बिगिनिंग, अब आई गेस फुल स्क्रीन है, या स्टिल इट्स not full नो, screen? फुल स्क्रीन नहीं है। Not sure. Just give me a second then. Hide, stop, share screen, try screen, screen 2. I guess अब ये full screen है, ठीक है. So बात होती है UOB, how you pronunciate the university? University of Bhavanagar is UOB or IOUB, something like that. So starting from that, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, मेरा बैकग्राउंड की बात कर रहा था मैं. तो जो बैकग्राउंड है मेरा, इट्स बेसिकली बेसिक सीक्वेंस है, एजुकेशन जो है वो साइंस में किया हुआ, मैट्रिक वगैरह. उसके बाद जो मेरा बैचलर्स है, उसके बाद जैसे पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इशू है, दे डोंट नो द पाथ. तो आई एम स्टिल वन ऑफ देम. उस टाइम में था, मतलब कि सो आई स्टार्टेड देन कॉमर्स में चला गया. फिर उसके बाद मैंने BSIT कर लिया, फिर मैंने दोनों डिग्री कर ली. उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ IT सर्टिफिकेशंस, CCNA वगैरह कुछ की इस तरह. और उसके बाद करते 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 आई गॉट ओनली जॉब इन IT. क्योंकि IT के अलावा मुझे कुछ और आता नहीं था. तो मुझे BCom की हाईएस्ट डिग्री के अलावा मतलब IT में जॉब मिली. तो एक परसेंट से कहते 8 साल पहले 7 साल पहले वो ऐसा नहीं था कि अगर आपकी कॉमर्स की डिग्री है तो आपको IT में जॉब नहीं मिलती. बस यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और रेफरेंस भी मैटर करता था. स्टिल रेफरेंस मैटर करते हैं आज भी. प्रूव योरसेल्फ एज वेल. सो मैंने करियर 2014 में एज एन IT सपोर्ट ऑफिसर स्टार्ट किया एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है. दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ करियर. उस टाइम मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी, बैचलर्स थी, हाईएस्ट एजुकेशन जो कह सकते हैं आप. बैचलर्स इन कॉमर्स थी. बीकॉम के बाद मैंने आई वाज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से मैं BS या CS टाइप कुछ कर नहीं पाया. आफ्टर दैट तकरीबन 19 में मैंने मास्टर्स इन IT कंप्लीट किया. जो 2 साल की डिग्री थी मैं 3.5 साल में पास की, बिकॉज फिर एक जॉब के साथ वो कंटिन्यू करना मुश्किल होता है थोड़ा सा. सो इसके साथ साथ लेकिन एज एन IT सपोर्ट ऑफिसर 2 साल जॉब की. फिर 4 साल मैंने अगले नेटवर्किंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जॉब की. स्टिल मैं BCom था. उसके बाद इस 4 साल के बाद 6 साल के मैंने मास्टर्स इन IT किया, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स प्लान नहीं था. मैंने व्यू वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से किया था, तो उनके प्लान में मैथमेटिक्स नहीं होती थी. सो दैट वाज स्टोरी. जब मैथ्स नहीं थी मैं उसमें चल गया. प्रोग्रामिंग, डेटा कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम काफी वो जो वो थी ताकि ना होता है एडवाइस नंबर हिट पॉइंट. तो जिसकी वजह से मैंने वो मास्टर्स आइडिया नहीं कर लिया. एंड इट वाज वेरी गुड स्कीमिंग. 3.48 समथिंग GPA भी है. GPA काफी अच्छा था मेरा. सो पॉइंट इज दैट कि आफ्टर दैट 2019 में यस 19 में मैं नेटवर्किंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब कर रहा था, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था. देन आई मूव्ड फॉरवर्ड के यार के हो क्या रहा भाई, दुनिया में जॉब्स कहाँ पे आ गई हैं. मतलब कि स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल जॉब्स पे रहना है या कुछ आगे फ्यूचर जॉब्स को देखना है. तो उस समय क्लाउड का बड़ा बूम था. तो एक एकेडमी थी जो क्लाउड की ट्रेनिंग करवाती थी. वहाँ सबसे पहले मैंने अमेजोन पढ़ा, फिर मैंने गूगल क्लाउड किया, क्लाउड किया, मल्टी क्लाउड. सो उस कोर्स में करने के साथ साथ मैं सर्टिफिकेशंस पास करता रहा. मैंने अमेजोन एसोसिएट कर लिया. उस टाइम SOC1 एग्जाम कोड होता था. फिर मैंने गूगल क्लाउड प्रोफेशनल आर्किटेक्ट डायरेक्ट एग्जाम पढ़ा भी चुका था उसकी एडमिशन साथ में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर. फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर किया. मैंने माइक्रोसॉफ्ट में 3x सर्टिफिकेशन पास की और मैंने उसका MCT का रैंक हासिल कर लिया. उसके बाद गूगल मैंने उसमें एक सर्टिफिकेशन की थी. एंड आफ्टर दैट पे अप टू 30,000 पर मंथ थी 2021 में. उसके बाद जो मैंने डायरेक्ट स्किप किया, इट वाज मोर, ठीक है, इट वाज आई थिंक कैरियर सीट पे जाते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द गूगल सर्टिफाइड. और दैट वाज अ कंपनी जो पार्टनरशिप कर रही थी, तो उनको प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, इन्हें प्री-सेल्स को काम शाम आता हो. उसमें क्या चीज़ होती है कि आपको क्लाउड के आर्किटेक्चर बात करना आती हो, कैलकुलेशन करना आती हो, क्लाइंट से बात कर सकते हैं, आपने कोई प्रोफेशनल 3-4 साल जॉब की हो. बट दे आर पेइंग वेरी हाई. जितनी आप बोलेंगे उतना पे करेंगे, हमें अर्जेंट बेसिस पे बंदा चाहिए. सो कंपनी में उनको पार्टनरशिप का रैंक मिल
मेरे 3 जूनियर से उनको मैंने ट्रेनिंग करवाई, वो पास हुए, तो दैट वाज ना गूगल पार्टनर एंड डायरेक्ट, यू कैन से आई वाज वर्किंग फॉर गूगल कंपनी इन पाकिस्तान। मूव करते करते इन दैट कंपनी आई पास वन मोर सर्टिफिकेशन जो गूगल क्लाउड नेटवर्क स्पेशलिटी कहते हैं। बेसिक पहले सर्टिफिकेशन होती है इसमें एसोसिएट की, जिसे एस कहते हैं, ACE एस। और किसी का सवाल हो तो साथ टाइप कर सकता है। अब मैं सर्टिफिकेशन मैनेजर बता रहा हूँ। तो एस होती है एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर। उसके बाद आप मूव करते हैं तो डायरेक्ट आती है प्रोफेशनल, दैट इज प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट। इसके बाद प्रोफेशनल क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, इससे सबसे पहले प्रोफेशनल का नाम लिखा होता है। तो गूगल ने एसोसिएट के बाद डायरेक्टली कैन गो फॉर प्रोफेशनल। 6 महीने प्रीरिक्विजिट्स में लिखी है अपनी वेबसाइट पे कि आप एस के लिए आपको 6 महीने का गूगल क्लाउड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपने पढ़ा हो, लैब्स किए हो, थ्योरी पढ़ी हो, फिर आप 6 महीने में उसको अटेम्प्ट करें तैयारी करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद। और उसके बाद जो प्रोफेशनल है उसके लिए 2 साल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैंने पढ़ाने के बाद मैंने डायरेक्ट किया। और ये एग्जाम वो नहीं है जो पूल से होते हैं, डंप से होते हैं। ये टोटली सिनेरियो बेस होते हैं। इसका अगर पूल आता भी है तो 5 से 6 सवाल से ऊपर नहीं आते इसके डंप्स में। तो पॉइंट इज दैट कि आई पास द प्रोफेशनल। उसके बाद मैंने नेटवर्क इंजीनियर प्रोफेशनल किया, क्योंकि मैं डेवलपिंग में इतना कुछ अच्छा नहीं था, डेवलपमेंट वगैरह में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे जॉब करने के बाद मैंने क्या किया कि मैं नेटवर्क इंजीनियरिंग में आ गया इसमें प्रॉपर्ली। सो मेरी नेटवर्किंग भी इतनी कोर स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन मैंने प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियरिंग पास किया, क्योंकि वो गूगल क्लाउड के नेटिव टूल्स पे बात करता है, नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं। इट्स नॉट लाइक shut down the NAS Raza. It's not like that. उसमें Google Cloud की बातें होती हैं। फिर मैंने अभी last month ago I passed Google Cloud Professional Security, जो कि पाकिस्तान में मैं एक सेकंड कराची से बंदा जिसने, वो एक डेवलपर है बाय प्रोफेशन। तो मैं भी कंपनी में जॉब करता हूँ जो कि एआई बेस्ड सॉल्यूशंस में टॉप 3 में आती है पाकिस्तान में, दैट इज एफिनिटी। और एफिनिटी का एक सॉल्यूशन है जो कि कॉल डायलिंग सॉल्यूशंस की ऑटोमेटिक एआई एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके कॉल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। मतलब कम्युनिकेशन चैनल या कॉल सेंटर्स का जो सॉफ्टवेयर है उसकी ऑप्टिमाइजेशन या एआई एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए वो इसको मैच्योर करते हैं। सो राइट नाउ देयर आई एम मल्टी क्लाउड इंजीनियर। देयर हमारा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एजर पे मोस्ट मेजरली काम होता है, और हम अमेज़न को भी यूज कर रहे हैं। सो दैट वाज माय सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं बाय प्रोफेशन कहाँ पे था और लाइक किस तरह मैंने प्रोग्रेस की। और राइट नाउ इट्स माय थर्ड जॉब, आई एम इन अफिनिटी एंड इट्स हाइब्रिड एनवायरनमेंट जहाँ पे प्राइवेट क्लाउड भी होता है, पब्लिक भी होता है। ठीक है। सो दैट्स अबाउट माय brief introduction. Let me start with some more things. Let me show you the screen again. Yep. So anyone from UMT? UMT is in Lahore. UMT के students इसमें होंगे, I guess. So that is my LinkedIn profile. That is my current skill set. 3x GCP, Azure Solution Expert, MCT, VCP 7 virtualization exam होता है, Terraform, automatic cloud provisioning का tool है, infrastructure as a code का tool है. So moving in this, मैं certification की बात करूँ तो जो 3 certifications की मैं बात कर रहा हूँ आपको, that are this one, Google Cloud Security Engineer. This is 2 only in Pakistan जैसे। उसके अलावा एक नेटवर्क इंजीनियर है। इसके अलावा आपके पास आता है फिर क्लाउड आर्किटेक्ट। तो 3x इन पाकिस्तान आई एम ओनली राइट नाउ, अकेला मैं ही पाकिस्तान में 3x प्रोफेशनल सर्टिफाइड एक्टिव किया है अपना। सो ये एग्जाम्स इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी थ्योरी गुड है, और अगर आपकी कंसेप्ट अच्छी हैं, अगर आप रट्टे को फॉलो नहीं करते, अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं तो आप चल जाते हैं। मीन यू डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग, बट you should have to be like smart enough to pass these things. सो बाकी बात करते हैं थोड़ा सा कैरियर के बारे में। हमारा सेशन है ज़्यादा, तो कैरियर बेस्ड बात करता हूँ। सबसे अगर गूगल पे आप लिख लें, अभी मैंने टाइप लाइक 5 मिनट्स अगो, हाईली पेड आईटी सर्टिफिकेशन 2023, जिसके अंदर ये बताता है डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, मतलब 3 टॉप पे आ रही हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में के अंदर भी है। सो ये मेरी पास्ट यू कैन से पैसा कमाने का तरीका था। इसके बाद मैं फुल टाइम इसमें आ गया, और आई मूविंग इनटू दिस डेवऑप्स नाउ। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इज नॉट माय पाथ। तो जो डेवलपमेंट होती है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स सपोर्ट करती है। डेवलपर जो है वो अपनी कोड एप्लीकेशन करता है, और उसको फिर डिप्लॉय करना, ऑटोमेट करना, प्रोविजन करना, वो डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़िम्मे में आता है। सो
बेसिकली अगर हम सर्च करें, मैंने गूगल ट्रेंड्स खोला हुआ है, ये पाकिस्तान का इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है। अब मैं एक बात करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो कि पाकिस्तान में अच्छा पे कर रही हैं, मैं उनकी बात करूँगा, वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, वो पाकिस्तान के पेरोल पे नहीं है। वो यूएस से ऑपरेट हो रही हैं, वो यूएस के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। तो हम यूनाइटेड स्टेट्स को बात करते हैं कि यूएसए के अंदर गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म तक क्या अभी स्कोप जा रहा है, कैसा सेशन जा रहा है, ठीक है? अब इसकी कंपैरिज़न भी कर लेते हैं किसी के साथ मज़ीद। सो अगर मैं इसको 12 महीने नहीं, इसे मैं कर लेता हूँ लास्ट पास्ट 5 इयर्स, लेट्स सी। सो ये मुझे बताएगा इसका ट्रेंड क्या जा रहा है। अब इसका जो ट्रेंड है, इट्स वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जीसीबी कंसोल, ये इसकी सर्चेज़ आ रही हैं। अब इसका हम कंपैरिज़न कर लेते हैं जी अमेज़न वेब सर्विसेज़ से। वेब सर्विसेज़ जो कि पास्ट में बड़ा पॉपुलर है और ये पास्ट इसके ट्रेंड है, तो इसके अंदर क्या है जो हमारे पास ब्लू में है, ये गूगल क्लाउड है और यहाँ पे अमेज़न रेड में। बेसिकली अमेज़न बहुत ही अ, अब अमेज़न क्या है कि अमेज़न बहुत ही ज़्यादा वायरल रहा है शुरू से। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर कर लें यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, तो ये भी क्लाउड प्रोवाइडर है। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को आप देख लें तो अब येलो में एज़्योर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सबसे वायरल है, उससे नीचे आपके पास आता है अमेज़न। और ये अगर मैं इसको करता हूँ लास्ट लाइक पास्ट 12 मंथ्स, सो यहाँ पे ट्रेंड में सबसे ऊपर तो माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन एक कंसिडरेबली एक अच्छी अमाउंट है यहाँ पे गूगल। इट्स वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें, रिमूव, सो अब मेरे पास आ जाते हैं अमेज़न और ये। सो यहाँ पे एक कंसिडरेबली बहुत अच्छा मुकाबला जा रहा है। देखिए 50% पे गूगल है, 50% पे अमेज़न है। सो मीन्स कि जो कंपनीज़ पाकिस्तान में हायरिंग कर रही हैं टेक्निकल जॉब्स के ऊपर, सो वहाँ पे आधा-आधा मुकाबला हो चुका है। लास्ट 1 साल के अंदर आप देखें तो गूगल और अमेज़न तकरीबन-तकरीबन 47-53 का मुकाबला कर रही हैं और गूगल बहुत ही रैपिडली ऊपर जा रहा है, ठीक है? आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट यू कैन से अब गूगल टेक ओवर कर रहा है यूएसए में। इसका मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है कि ये ट्रेंड्स के अंदर आप देख सकते हैं इसको। सो दैट इज़ द ट्रेंड कि मार्केट ट्रेंड क्या है भाई, जॉब कौन-सी करें? कौन-सा स्किल सेट पकड़ें, अमेज़न करें, गूगल पकड़ें? सो मेरा इसमें मशवरा आपको ये रहेगा कि आप 2 क्लाउड पकड़ें एटलीस्ट, लाइक अमेज़न और गूगल, और या गूगल और एज़्योर। बिकॉज़ इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि एक का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर मैंने पकड़ा हुआ है बेसिकली। मैं अपनी बात करूँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर गूगल को लिया हुआ है। सो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए गूगल एक ऐसा क्लाउड है जिसके ऊपर लोग माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के साथ पैरेलल में चीज़ चला रहे हैं और गूगल में सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़न। सो ज़ाहिर-सी बात है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट कर रहे हैं, वो यही चीज़ देखेंगे यार, जिसकी पे ज़्यादा हो, जिसकी डिमांड भी अच्छी हो, तो गूगल एक अच्छा ऑप्शन है अभी। तीसरी रीज़न ये कि गूगल के सर्टिफाइड बंदे बहुत कम है इस टाइम पाकिस्तान में। यू कैन सी इन हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स में भी नहीं है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट में और अमेज़न में आप एक बात करो ना, वो ये कहते हैं कि पंजाबी में ईंट पुट्टो ना तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड इंजीनियर निकलता है, ठीक है? तो वो बात अभी इस टाइम अमेज़न में है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। और लेकिन गूगल में सैचुरेशन इतनी नहीं है, इतना गंद भी नहीं है, मतलब बहुत कम बंदे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर क्लाउड्स। सो इन दिस क्लाउड राइट नाउ इट्स द फर्स्ट विंडो मूवर अपॉर्च्युनिटी कि आप पहले आएँ और पहले पाएँ, ठीक है? इन कंट्रास्ट टू दैट हमारी जो हमसाया कंट्री है, उसने सबसे ज़्यादा फोकस इसी क्लाउड पे किया है और सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट आता है। सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे, व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज़ ये गोल्ड माइन है। और पाकिस्तान में थोड़ा-सा ये है कि हम ट्रेंड को थोड़ा लेट पिक करते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा नुकसान भी उठाते हैं। सो इन माय स्टडी एंड माय व्यू, अभी ये मस्ट गो क्लाउड है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कह रहे हैं, ये तो मस्ट गो है, मस्ट है। कम्बो में माइक्रोसॉफ्ट रख लो, अमेज़न रख लो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है? सो दैट इज़ अबाउट द ट्रेंड्स, ठीक है? और थोड़ा मैंने सर्टिफ़िकेशन का बता दिया, थोड़ा मैंने बता दिया कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। हाइली पेड सर्टिफ़िकेशन दिखा दी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको गो थ्रू करवा दूँ। ओके। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कितने लोगों को कुछ एनी हाउ है, आइडिया है? येस या कुछ लिख दें आई गेस चैट में। एनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग? तो मैं एक डेफिनिशन से स्टार्ट करूँगा, बाद फिर मैं इसकी थोड़ी-सी स्लाइड दिखाऊँगा। और फिर मैं उसका जो है पाथ भी थोड़ा डिफाइन करूँगा कि सर्टिफिकेशन एज किस तरह करते हैं, क्या सा पाथ है। सो मैं चैट देख रहा हूँ, आप लोग टाइप कर सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? इसमें भला क्या है भाई? इसे करते हैं क्या लोग और ये मार्केट में किधर इस्तेमाल हो रही है? तो मैं चैट देख रहा हूँ। आई कांट सी मलिक मोहम्मद उस्मान का लास्ट मैसेज है। उसके बाद किसी ने चैट में कुछ टाइप नहीं किया। सो कितने लोग जानते हैं? येस या नो में लिख दें जस्ट।
चैट में टाइप कर दें, आई कैन सी. सो आई विल मूव फॉरवर्ड टू द क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन. अच्छा यस है, मिस्टर अली कहते हैं नो, महम आसिफ नो नो नो, हमाद फजल भी नो कह रहे हैं. अच्छा साथ कहते हैं नो, मायरा जमीन यस, नौरीन काजमी नो, मुजम्मल रजाक यस, नो यस. मुझे वैसे अभी भी तो नो यस का बराबर बराबर दिख रहा है. नो आइडिया अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग. लाइबा मुगल कहती हैं हाँ जी आइडिया है. अम, अमान मुफ्ती सब कह रहे हैं कि नो. खोला नवाज कहती हैं जी नो. मतलब ये अब मोस्टली नो दिखना शुरू हो गया. नो ओके. मीन्स के ज्यादातर का आइडिया नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में भाई हो क्या, रेस्ट टाइम क्या बता. सो ओके नो इश्यूज, आई हैव अ स्मॉल स्लाइड फॉर दैट एज वेल कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या. सो मैं इसको भी थोड़ा गो थ्रू करवाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी बेस बन जाए, फिर हम मूव करते हैं कि भाई इसका पाथ किस तरह चलता है. सो व्हाट द क्वेश्चन आई हैव रिसेंट व्हाट द क्वेश्चन आई हैव रिसेंट ज्वाइंड. राबिल क्वेश्चन ये है कि कितने लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ बारे में जानते हैं, नो या थोड़ा बहुत जानते हैं. यस नो में लिखना था तो काफी ने नो लिखा है, तो उसके बारे में हाँ, आप जानते हैं ठीक है बेहतर है. सो डेट फॉर द क्वेश्चन, सर हम किस तरह से कर सकते हैं ये कोर्सेज. जी मुबशिर हुसैन, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ. पहले मैं थोड़ी सी बेसिक्स की बातें कर रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और इसका एवोल्यूशन क्या है, पैदा कैसे हुई है. उसके बाद हम जाएंगे कि सर्टिफिकेशन किस तरह करते हैं, गूगल के पास कौन से हैं, वो मैं थोड़ा गो थ्रू करवाता हूँ आपको. मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की जो मेरे पास एक स्लाइड पड़ी हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग वाले बेसिक से बनी हुई है, मैं आपको जैसे थोड़ा सा गो थ्रू करना चाह रहा हूँ. क्लाउड कंप्यूटिंग के आप इसको देखिए, इस एरिया को क्लाउड कंप्यूटिंग. आई थिंक स्क्रीन शेयर है, कोई चैलेंज तो नहीं है इसके अंदर, या मैं ब्राउजर को शेयर कर दूं पूरा. विंडो विंडो विंडो, आई गेस दिस इज ओके. अब आई थिंक पूरी विंडो शेयर है क्रोम की, ठीक है. तो आई कैन सी यस शेयर, ठीक है. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, इस एरिया का आपने पहले देखना गौर से. ये एंड यूज़र है, ये पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये टैबलेट्स हैं और ये आपके लैपटॉप्स हैं. तो ये डेस्कटॉप डिवाइस कहते हैं, इसको मोबाइल डिवाइस कहते हैं, आपके मोबाइल फोन. और ये टैबलेट्स हैं, मतलब मिड लेवल की डिवाइसेस जो कि इसके और इसके दरमियान में आती हैं. तो इस तरफ अगर आप देखें क्या है कि ये सारी एक राउटर से कनेक्टेड है. असल में यहाँ पे घर का इंटरनेट का राउटर है, इसे हम मॉडेम कहते हैं, ठीक है. यहाँ से आप लोग कनेक्ट करते हैं और आप बाहर की दुनिया से बात करते हैं, कम्युनिकेशन आपके घर से बाहर की तरफ जा रहा है. इस तरफ अगर आप बात करते हैं तो आपके पास एक डेटा सेंटर है, या एक सॉफ्टवेयर हाउस का सर्वर हाउस है, सॉरी सर्वर रूम है, या आपके पास कोई सर्वर्स या कंप्यूटर रखे हुए हैं दफ्तर के. दफ्तरों में क्या होता है, आपके घर में वाईफाई राउटर होता है, दफ्तरों में एक स्विच लगा होता है नेटवर्क का, उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बाहर की दुनिया की तरफ जा रहे हैं. और यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है, राउटर से अटैच्ड है, डिफरेंट सिनेरियो में भी होते हैं. तो ये बिल्कुल बेसिक्स की बात हो रही है. क्लाउड कंप्यूटिंग है जी. क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली आपका जो बहुत ज़्यादा सर्वर्स है ना, उनको वर्चुअलाइज करके क्लाउड पे या दुनिया से बाहर, दुनिया से बाहर तो नहीं कह सकते. क्लाउड का मतलब ये है कि आपके नॉर्मल डेटा सेंटर एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के रखा रहता है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक डेफिनेशन है, बेसिकली मैं आपको बताऊं. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द आर्ट ऑफ यूजिंग रिमोट कंप्यूटर्स दैट आर होस्टेड समवेयर आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ योर कंपनी. मतलब जो एक नेटवर्क है पूरे होस्टेड सर्वर्स का, जो कि आपके दफ्तर की प्रेमिसी में नहीं है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे इन शॉर्ट. अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हाइपरवाइजर्स की बात बड़ी जरूरी है. हाइपरवाइजर्स की बात करी, पहले जमाने में ना विदाउट वर्चुअलाइजेशन क्या होता था कि आपके सीपीयू, मेमोरी, निक और डिस्क, चार कंपोनेंट ना हर दुनिया की टेक्नोलॉजी में जो भी सर्वर्स को कंप्यूटर को चला रहे हैं, चार चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. एक सीपीयू, रैम, एक उसके लैन कार्ड निक कहते हैं, इससे नेटवर्क चलता है, उसका वाईफाई भी कह सकते हैं इसको आप, और एक डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, एसएसडी. उसमें क्या होता था कि आपका एक हार्डवेयर पे एक विंडोज इंस्टॉल होती थी, उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चलती थी. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 हो सकता है, ये हार्डवेयर आपका डेल हो सकता है, एचपी हो सकता है. एप्लीकेशन आपकी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है. उसके बाद जो वर्चुअलाइजेशन आई, वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ कि आप एक हाइपरवाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं विंडोज की बजाय, और उसके ऊपर एक से ज्यादा सर्वर्स को चलाते हैं. जितने ज्यादा उसमें रैम और सीपीयू है, उतने ज्यादा आप इस पे सर्वर्स बना सकते हैं. इस नरियो में क्या होता है, विदाउट वर्चुअलाइजेशन सिर्फ एक विंडो इंस्टॉल होती है, इसके अंदर हजारों विंडोज इंस्टॉल करते हैं अगर आपकी सर्वर में बहुत ज्यादा कंप्यूट रिसोर्सेज मौजूद हैं. क्या हुआ कि बेस सेम रही, लेकिन उसको लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर की मदद से. इसके लिए बहुत से पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, वीएमवेयर एक बहुत बड़ा नाम है, और बहुत सी कंपनी है. अब गूगल क्लाउड और सारे क्लाउड क्या करते हैं, वो इसे मास स्केल पे इस चीज को चला रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन को, लेकिन उनका हाइपरवाइजर अपना होता है. उसके बाद अब क्या होता है कि फिर टाइप 2 हाइपरवाइजर, टाइप 1 हाइपरवाइजर की टेक्नोलॉजी होती है. ये वही चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्चुअलाइजेशन लेयर, कि यहाँ पे आपकी जो है मल्टीपल विंडोज चल रही हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही हैं आपकी, मल्टीपल, कोई एप्लीकेशन सर्वर है, कोई इन्वेंट्री का सर्वर है, कोई
अकाउंट का सर्वर है, कोई ईआरपी का है, कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एप्लीकेशन का सर्वर है, डिफरेंट सर्वर चाह रहे हैं, तो ये वर्चुअलाइजेशन की लेयर है जो कि एक हार्डवेयर के ऊपर चल रही है। अब बेसिकली यूज इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होता है कि आपको ऑन डिमांड मतलब आपको जब चाहिए आप चलाएं, जब नहीं चाहिए उसको ना चलाएं, तो इसे कहते हैं ऑन डिमांड। क्लाउड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑन डिमांड की, जब आपको चाहिए चलाओ, नहीं चाहिए तो ना चलाओ। और जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके प्रेमिसेस से बाहर के, आपके दफ्तर या घर से बाहर हैं वो सर्वर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड्स कंप्यूट नेटवर्क डेटाबेस एंड स्टोरेज, ये इसकी बेसिक्स होगी। सर हाउ टू गेट दोस बेनिफिट्स रिबेल दीज आर बेसिकली, ये मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये उस्मान खान की दैट आर फ्रॉम शेयर आईटी अकेडमी। ये गूगल क्लाउड सर्टिफाइड थे पहले, लेकिन अभी गूगल क्लाउड नहीं पढ़ाते, सो दैट इज माय डिपार्टमेंट नाउ। सो ये सर्टिफिकेशन बैच उनकी हैं, मेरी अमेजोन की और माइक्रोसॉफ्ट की ज़्यादा हैं। सो जस्ट फॉर रेफरेंस में स्लाइड दिखा रहा हूँ, बैच को छोड़ दें तो दैट आर एग्जाम्स जो पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ऑन डिमांड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के, एक जगह पे आपकी फेलियर नहीं होता कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपकी वेब सर्वर है, एक से ज़्यादा सर्वर्स के पे चल रहा होता है। स्केलेबल का मतलब क्या है कि आप आपके पास जब लोड ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा सारे सर्वर्स को रियल टाइम में एंगेज कर सकते हैं। पीएसई को क्या है, जितने घंटे इस्तेमाल किया उतना आपने पे करना है। एजाइल क्या है कि आपके सर्वर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में टाइम आपकी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। हाईली अवेलेबल क्या है कि आपके हर टाइम एक से ज़्यादा सर्वर मशीन आपकी एप्लीकेशन को चला रही होती हैं। सिक्योरिटी क्या है, वहाँ पे हार्डवेयर सिक्योरिटी और वर्चुअल हाइपरवाइजर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डिफरेंट लेयर्स आती हैं। सिक्योरिटी की 7 लेयर्स होती हैं। जैसे आपकी टीसीपी आईपी में 7 लेयर्स होती हैं ना, इसी तरीके से आपकी एजाइल एजाइल एजाइल। अच्छा, एजिलिटी ये गो ग्लोबल मिनट्स, इसमें ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप दुनिया भर के डिफरेंट डाटा सेंटर्स के अंदर एट अ सेम टाइम चला सकते हैं। मतलब आपने इधर से पाकिस्तान से बैठे बैठे मैं इस टाइम यूरोप और अमेरिका में 4 सर्वर खड़े कर सकता हूँ, बना सकता हूँ 2 मिनट के अंदर। दैट इज एजिलिटी, गो ग्लोबल इन मिनट्स। कि आप डिफरेंट जोन्स और डाटा सेंटर में क्लाउड प्रोवाइडर की अपनी सर्विसेज को डिप्लॉय या अपने सर्वर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, ये एजिलिटी होती है। फिर टाइप्स बता रहा हूँ, ये अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्लाउड है, ओपन स्टैक ये प्राइवेट क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड एक नया एक कंपेटर है, ये सऊदी अरबिया में अच्छा यार है। ये एक प्राइवेट क्लाउड सोल्यूशन है, ये भी एक प्राइवेट क्लाउड सोल्यूशन है, अपाचे ये स्टैक का नाम है, ये ओपन स्टैक। फिर नीचे आ जाएं, फिर इसमें आईएएस का फ्लेवर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आती है, फिर प्लेटफॉर्म सर्विस आती है, फिर सैस आती है। सैस से स्टार्ट करूंगा। सैस होती है जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये होता है सैस सॉल्यूशंस। फिर पैस होते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो सर्वरलेस होते हैं, मतलब जहाँ पे आपको सर्वर को कॉन्फ़िगर नहीं करना। मतलब आपने पीएचपी के अंदर एप्लीकेशन लिखी है तो आपने उसके ऊपर डायरेक्ट स्पिन अप कर देनी है, कुछ भी विंडो डिपेंडेंसी कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, उसके बाद डायरेक्टली रन कर देना, उसे कहते हैं पैस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन की, एक लैपटॉप लो या एक विंडो सर्वर लो या एक वर्चुअल मशीन बनाओ, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन चलाओ। तो 3 मॉडल्स क्लाउड में मिलेंगे आपको हमेशा, सैस, पैस और आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। तो ये और ये फ्यूचर है। ये लेगेसी के अंदर आईएएस लेगेसी में आ चुका है, पैस और सैस इज फ्यूचर। तो जो भी कंपनियां एंटरप्राइज हैं वो बेसिकली सैस और पैस को बेच रही हैं। तो ये एंड था इसका स्लाइड का, मैं स्टॉप करता हूँ। एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद सम गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजीज के, गूगल के अंदर क्या ये किस जैसे चल रही है फ्रॉम करंट स्लाइड। आई गेस यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा सबको। और मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, इफ दैट्स विजिबल मुझे बताइएगा जरा। स्क्रीन विजिबल भी सबके साथ, तो हम ये कंफर्म करें। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म 101 लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई एक टाइप कर दे। जी। ओके, हम आसिफ कह रही हैं कि ठीक है, ओके शेयर है। सो आपके सामने एक स्लाइड पेश की है, मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है कि ना कुछ ऊपर कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज हैं, रोज 1 2 3 4। सो ऊपर जो है उसकी ना फंक्शनल डोमेन है कि वो फंक्शन क्या करता है। कंप्यूट उसका फंक्शन है, स्टोरेज उसका फंक्शन है, नेटवर्किंग उसका फंक्शन है, बिग डाटा उसका फंक्शन है, मशीन लर्निंग फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शनल टेक्निकल डोमेन्स लिखी हुई है कि उसका फंक्शन क्या है। और जो नीचे है वो प्रोडक्ट्स लिखी हुई है, प्रोडक्ट्स गूगल में इस फंक्शन को पूरा करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है। सो गूगल में ना हर क्लाउड में ना प्रोडक्ट का नाम होता है। जैसे कंप्यूटर इंजन यहाँ पे वर्चुअल मशीनों का नाम है, तो यहाँ पे अमेजोन में इसका नाम होता है इसका नाम होता है EC2। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन, एज्योर VM। सो हर क्लाउड में सेम टूल है, बस नाम तब्दील है याद रखिएगा, ठीक है। तो गूगल में क्या नाम है, कंप्यूटर इंजन एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम अपनी मशीनें चलाते हैं, वर्चुअल मशीन चलाते हैं। फिर एक प्रेम्प्टेबल VMs हैं, ये डिस्पोजेबल VMs होती हैं, 80% सस्ती होती हैं एज कम्पेयर टू दिस मशीन्स। फिर आपके पास कस्टम मशीन्स है कि आप किसी में अपनी मर्जी की रैम और प्रोसेसर का तनासब रख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन इंजन है, जो मैं आपको बता आपने PHP की एप्लीकेशन चलानी है तो सिर्फ आपने कोड को अपलोड करना है
और एक कमांड चलानी है कि और आपका पीएचपी की पूरी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। और ये पीएचपी, जावा, गो, नोड, पाइथन सब फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है। आपको कोई सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको डीएनएस होस्टिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे डेवलपर हैं, एप्लीकेशन बनाओ, ऐप इंजन पे कोड अपलोड करो अपनी क्लाउड शेल में गूगल के, और वहां से ऐप इंजन क्लाउड गूगल क्लाउड ऐप डिप्लॉय लगाओ कमांड, और आपकी गो लाइव हो जाएगी एप्लीकेशन रियल टाइम के अंदर, और आपको एक पब्लिक यूआरएल भी मिल जाएगा। और ये फ्री होती है। गूगल क्या देता है, $300 का क्रेडिट देता है हर बंदे को जो भी साइन अप करता है। तो $300 के अंदर आप कोई भी सर्विसेज 3 महीने के लिए चला सकते हैं, और आप उसे अब्यूज ना करें, और वो आपके पैसे भी नहीं कटेंगे जब तक आप उसे फुल पे अपग्रेड नहीं करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट आप ये सारी सर्विसेज $300 के क्रेडिट के अंदर गूगल की अवेलेबल है, वो उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर कंटेनर इंजन है, ये कंटेनराइज टेक्नोलॉजी है, डेवऑप्स को फॉलो करती है। ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये डेवऑप्स के अंदर ये काम ज़्यादातर इस पे हो रहा है। सो सर्वरलेस में ये है, डेवऑप्स में ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में ये 4 पार्ट है। ऊपर मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर इंजन, प्रेम्पटेबल वीएम्स, ये आईएएएस है, ये आपके पास सर्वरलेस है, और ये आपके पास डेवऑप्स या सर्वरलेस के अंदर ही आता है। फिर स्टोरेज की डोमेन है। कंप्यूट क्या होता है, कंप्यूट में रैम और प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो प्रोसेस कर रहा है डाटा को। उसके अलावा स्टोरेज के अंदर जहाँ पे आपका डाटा सेव किया जाता है, जैसे आपकी तस्वीरें और आपकी वीडियोस गूगल क्लाउड की स्टोरेज पे सेव की जाती हैं। फिर यहाँ पे बैकअप की स्टोरेज सेव की जाती है। यहाँ पे आपका एसक्यूएल बेस्ड सर्वर्स, जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल के सर्वर्स हैं, उसके थ्रू होता है। यहाँ पे क्या क्या आपके पास एसक्यूएल आ जाता है, एसक्यूएल वगैरह की आप स्टोरेज कर लेते हैं यहाँ पे, कि आपकी डेटाबेस की स्टोरेज यहाँ पे क्लाउड एसक्यूएल के नाम से। फिर डाटा स्टोर नो रिलेशनल है, डॉक्यूमेंट मैनेज डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। मतलब कुछ हर हर कंप्यूटर सॉल्यूशन की ना रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वर्डप्रेस की बात करूंगा, कुछ लोगों से वर्डप्रेस का आइडिया होगा यहाँ पे। वर्डप्रेस में क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर ना देखिए, आपका एक चल रही थी वेब सर्वर अपाचे टॉमकैट, जिसके ऊपर वो चलता है। अगर आप जैम्प पे काम कर रहे होते हैं, लोकल डेवलपर्स आप लोग वहाँ पे, तो जैम्प पे होता है। लैगिंग बहुत आ रही है, सबको लैगिंग आ रही है या किसी एक को है? ये स्क्रीन शेड है, एक ही स्क्रीन पे हूँ अभी, मैंने स्लाइड शेयर नहीं की अगली कोई। कोई मुझे कंफर्म करता है, कोई लैगिंग तो नहीं है आवाज़ में या प्रेजेंटेशन में? लैगिंग नहीं है, फाइन, नहीं ठीक नहीं, है। लैगिंग नहीं है, लैगिंग ओके, नहीं तो किसी के एक आधे का इंटरनेट का मे भी इशू होगा। सो मैं बात ही कर रहा था कि ना देखिए, एक एप्लीकेशन के ना टीयर्स होते हैं मुख्तलिफ। तो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस वर्डप्रेस एक वेब सर्वर पे चलती है। हाँ, माउस मूवमेंट को छोड़िए, आप इसको देखिए, मैं बात बताना चाह रहा हूँ कंसेप्ट। सो असल में आपका ना वर्डप्रेस की जो कंप्यूट है, रैम प्रोसेसर है, वो कंप्यूटर इंजन पे चलता है, और आपकी डेटाबेस बैकएंड एक क्लाउड एसक्यूएल पे चलती है, गूगल का एक मैनेज सॉल्यूशन है। उसके अलावा जो उसको नेटवर्किंग सर्विसेज सपोर्ट करती हैं, गूगल का लोड बैलेंसर भी हो सकता है, गूगल का वीपीसी भी हो सकता है, सीडीएन भी हो सकता है, जिसके थ्रू आपके बहुत जल्दी से कंटेंट नजर आता है अपने मुल्क के अंदर या अपने क्लोज डेटा सेंटर से। फिर ये टेक्नोलॉजी है लेयर टू सर्किट, मतलब एक फिजिकल तार लगी होती है गूगल के साथ। आवाज में नहीं है, बस माउस, ठीक है, माउस का इशू नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ना आपकी एप्लीकेशन के जो आपका सॉफ्टवेयर चाह रहा है ना, उसको होस्ट करने के लिए डिफरेंट टोटो में, डिफरेंट जगहों पर उसको तकसीम किया जाता है, डिफरेंट पीसी में तकसीम किया जाता है, और उसको डिफरेंट एरिया में चलाया जाता है। मतलब कंप्यूटर के ऊपर वेब सर्वर चाह रहा है, आपका स्टोरेज या यूजर की स्टेट वर्डप्रेस की आपकी इस डेटाबेस के अंदर है, और आपका जो डाटा है स्टोरेज, मतलब इमेज पीडीएफ वर्डप्रेस की, वो एक क्लाउड स्टोरेज के अंदर पड़ी होती है। लोड ज़्यादा आता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे गूगल क्लाउड लोड बैलेंसर को इस्तेमाल करके सब पीछे मशीनों पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हो और ऑटो स्केल करते हो। मतलब आपके पास अभी वर्डप्रेस के एक नया नया प्रोजेक्ट है, इतना लोड नहीं है। कल आपकी वेबसाइट हिट हो जाती है, तो आप उसके पीछे 1000 सर्वर्स को भी चला सकते हो यूजिंग दिस गूगल क्लाउड लोड बैलेंसर टेक्नोलॉजी। सो गूगल के ना डिफरेंट टूल सेट हैं, ये जो चीज़ें आ रही है एपीआई बेस्ड है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस होता है, इसके थ्रू आप किसी सर्वर की फंक्शनैलिटी को हासिल कर सकते हैं कोड लिखे बगैर। फिर ये डेटा वेयरहाउसिंग की टूल है बिग क्यूरी, आपका हिस्टोरिकल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डाटा को इंजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है क्लाउड में, ये डाटा को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डाटा लैब आपका डाटा की रिफाइनिंग के लिए, पबसब आपकी सिंक्रोनस इवेंट मैसेजिंग के लिए होता है। ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। सो बस बताने ये चाह रहा हूँ कि कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग और ये सारी चीज़ें मिल के एक एप्लीकेशन को सर्व कर रही होती हैं, एक यूज़ केस को डिफाइन कर रही होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक यूज़ केस है। तो इतना ही टेक्निकल मैंने इस स्लाइड में बताया था कि गूगल की मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी लेटेंसी कितनी है, इसमें कितने यूज़र आ रहे हैं, कितने लोड जा रहा है, सीपीयू रैम कितना कंज्यूम हो रहा है, किन-किन यूज़र को उसके ऊपर एक्सेस देनी है। तो ये आईएएम और गूगल स्टैक ड्राइवर, ये मॉनिटरिंग के टूल्स हैं। सो गूगल आपको मुख्तलिफ टूल्स देता है अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ठीक है? दैट इज़ फ्रॉम दिस पार्ट। आगे मूव ऑन करता हूँ। अब ये तो हो गई थोड़ी टेक्निकल बातें, अब मूव ऑन करता हूँ जी सर्टिफिकेशन की तरफ। हम आए थे जी सर्टिफिकेशन के ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, साउंड्स गुड। शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, स्क्रीन नंबर 2,
कोई सवाल हैं तो सब आप चैट में टाइप कर सकते हैं, आई विल आंसर, वरना मैं साथ साथ स्क्रीन देख रहा हूँ आपकी ना, आंसर क्वेश्चन वाली भी चैट में। सो अब हम बात कर रहे हैं जी, हमारे पास इसके अंदर बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आता है जी गूगल डॉट एसोसिएट इंजीनियर का पाथ। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल की पहली सर्टिफिकेशन है, उसे कहते हैं एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर। इसको पास करने के लिए आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेसिक रिक्वायर्ड है, और आईटी बैकग्राउंड ना भी हो तो गुजारा हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं थोड़ा सा स्लो बोलें, ओके साउंड्स गुड। तो जस्ट टू वाइंड अप फास्ट बिकॉज टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है। सो पॉइंट इज दैट कि इसके ना मॉड्यूल्स होते हैं इस सर्टिफिकेशन को तैयार करने के। इसमें मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि हमारे पास ना वीक 1 के अंदर हमने गूगल के कोर फंडामेंटल्स का मॉड्यूल करना होता है, जो कि 7 घंटे पर मुश्तमिल है। ठीक है, अगले मॉड्यूल में एक ऑप्शनल है यहाँ पे, अब अगर अमेजोन से आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट से आ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर आपने कोर फाउंडेशन को करना होता है, ये 7 घंटे का है। इसके अंदर वीडियोज भी होती हैं और इसके अंदर आपके पास लैब्स भी होती हैं, मतलब हैंड्स ऑन भी होता है। सो इसके बाद तीसरा आपके पास स्केलिंग एंड ऑटोमेशन है कि आपके पास अगर कोई सर्विसेज आपने चलाई है उसको स्केल किस तरह करेंगे, अगर लोड ज्यादा आता है तो कितने सर्वर आप एक्सपेंड करेंगे, ऑटोमेशन की कितनी जल्दी आप सर्वर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं क्विकली। आगे स्किल बैजेस हैं। स्किल बैजेस क्या हैं, इसके अंदर टोटल लैब्स होती हैं। ये परफॉर्म फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 6 घंटे की लैब्स ये हैं, और 6 घंटे की लैब्स ये 12 घंटे, और 8 घंटे हैं क्यूबरनेटिस इंजन के ऊपर एक लैब है कि किसको बस जैसे बेसिक लेवल का है कि क्यूबरनेटिस की प्रोडक्ट क्या है गूगल के अंदर। और क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज, आप क्लाउड में रिसोर्सेज, आप कह रहे हैं विदाउट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये जो गूगल आपको चीजें पढ़ाएगा ना, इसमें आपसे कुछ थीटा गैमा की बातें नहीं करेगा। वो सीधा सा बात करेगा, यार आपकी एप्लीकेशन चलनी है तो उसके लिए आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और गूगल में ये टूल है, सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे कोई थ्योरिकल बातें बातें नहीं होती। यहाँ पे वो सीधी स्ट्रेट फॉर बात करते हैं, ये इंडस्ट्री में काम हो रहा है, जिसका एक डिमांड है, जो आर्किटेक्चर चल रही है। सो यहाँ पे ऑटोमेशन के बारे में है कि आप किस तरह जल्दी से जल्दी अपने ऑटोमेट करके सर्वर्स को स्पिन अप कर सकते हैं गूगल के अंदर। फिर आपके पास क्रिएशन की लैब है, फिर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की लैब है, क्रिएट मैनेज कॉन्फ़िगरेशन, 3 लैब्स हैं। उसके बाद एंड पे ना आप इसका एक आपको मॉकअप एग्जाम मिलता है। कैन यू जूम द डॉक्यूमेंट काइंडली, ओके, आई गेस के थोड़ा सा जूम हो गया, ठीक है, आई गेस बेहतर है अब, ठीक है, बेहतर है, जूम जूम इन हो गया, नजर आ रहा है। सो यहाँ पे लास्ट पेज है, यहाँ पे क्या होता है कि हम इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के एक लैब्स हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन की हैं कि हम रजिस्टर की में प्रिपेयरिंग फॉर एस एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर के इसकी कुछ प्रिपरेशन के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए होंगे। सो अब बात करते हैं कि आपने सब कुछ तैयार कर लिया, एक पाथ आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू गाइस, ग्रुप में डाल दूंगा, बल्कि अरगम से मैं शेयर कर दूंगा ताकि वो सबके साथ शेयर कर दें। सो दैट इज अबाउट, ये पूरा पाथ होता है, इसे फॉलो करना होता है, कुछ लैब्स हैं, कुछ वीडियोस हैं। ये बेसिकली पेड है, लेकिन गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब और ये कम्युनिटी है गूगल स्टूडेंट्स क्लब, इनको कूपन्स मिलते हैं। ठीक है, इन्हें फ्री में वॉचर्स और कूपन्स मिलते हैं। आप ये पूरा पाथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं गूगल डेवलपर्स ग्रुप और गूगल स्टूडेंट्स क्लब के थ्रू। आई थिंक इस तरह की ऑफरिंग आती हैं। आयशा एंड आदिल, दिस गाइस कैन डिस्कस इन ब्रीफ कि क्या ऑफरिंग्स आ रही हैं क्विक लैब्स की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। ये फ्री में वॉचर्स और कूपन्स मिलते हैं। अच्छा, if a summer is coming, most of us are fine who are initial semester who has to pursue and this can be done in after 2 months. ये 2 महीने बहुत हैं इसके लिए, 2 से 3 महीने इस पाथ के लिए, इसे फॉलो अप करने के लिए आपकी टेक्निकल सर्टिफिकेशन भी हाथ में आ जाएगी, जॉब पे जाएंगे और आपने बेसिक एजुकेशन जिसमें भी की हुई है तो बहुत अच्छा होगा। आदिल हमजा कहते हैं कि यस विल ब्रीफ ऑन द वॉचर्स, ठीक है, वॉचर्स के बारे में बताएंगे। ओके, सो दैट इज एंड। सर्टिफिकेशन रजिस्टर कैसे होती है थोड़ा ये बता देता हूँ क्विकली। एक वेबसाइट है यहाँ पे, इसका नाम है वेब एक्सेसर, जब आपको फ्री वाउचर मिल जाएगा ना, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके ना अपना एग्जाम रजिस्टर कर देना वेब एक्सेसर पे। तो यहाँ से गूगल के एग्जाम रजिस्टर होते हैं, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं घर से बैठकर, एक क्लोज रूम के अंदर वो सारा आप चेक करते हैं वीडियो के ऊपर, और उसके अलावा आप उसको उसके थ्रू भी कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर में जाके कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। यहाँ से एग्जाम रजिस्टर होता है इस वेबसाइट से, वेब एक्सेसर से, उससे पहले लेकिन आपने पूरा पाथ कंप्लीट करना है, स्टडी करना है। उसके बाद आप जाते हैं एसोसिएट की तरफ। मैं प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा क्योंकि अब स्टूडेंट्स लेवल की एक मीटिंग है, तो मैं सिर्फ इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सो ये हैंड्स ऑन और थ्योरी दोनों पे बेस्ड होता है। वीडियोस भी होती है बड़ी मजे की, 4 से 5 मिनट की, आर्किटेक्चर डायग्राम्स होती हैं, बड़ा कुछ दिखाते हैं लोग।
सो जी फ्रॉम करंट स्लाइड बात करते हैं आगे। लास्ट स्लाइड थी, ये मैंने आपको इस सर्टिफिकेशन का बता दिया अभी, ठीक है। सो नीचे मेरा यहाँ पे इस सब नंबर भी है। इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू लर्न गूगल क्लाउड, ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए किसी के बारे में, तो मैंने एक नंबर अपना एक कॉलम में लिख दिया है। सो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी रब्ता कर सकते हैं। लिंक्डइन अकाउंट मैं शेयर कर देता हूँ चैट में भी। सो इफ एनी वन ऑफ यू चाहता है कि यह स्टार्ट कहाँ से करना है, कितना टाइम चाहिए, कितनी एक्सपर्टीज चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, तो वो आप सवाल भी कर दूंगा। सर इन सर्टिफिकेट के लिए गूगल टीच करते हैं। हाँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ प्रोफेशनल। मैं 3.5 साल से ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ। गूगल क्लाउड प्रोफेशनल पढ़ाता हूँ मैं, एसोसिएट प्रोफेशनल बैजिस के अंदर, और 1-to-1 ट्रेनिंग्स अमेरिका, यूएसए, इंडोनेशिया। मैंने काफ़ी मालिक में पढ़ाया हुआ, पाकिस्तानियों को और गोरों को भी। सो दैट प्रोफेशनल ट्रेनर एज वेल, दैट इज फ्रॉम माई साइड। नंबर आप नोट कर लें, तस्वीर लें मोबाइल से। एंड दैट इज एंड फ्रॉम माई साइड। अब वाउचर्स के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे आई गेस आदिल हमजा। Adil Hamza, on to you. That's the end of my presentation. मेरी तरफ से इतना ही था। जी, मैं वाउचर्स पे ब्रीफ कर दूंगा सबको। Yep. टीम से कह दिया, वो ऐड कर देंगे सबको ग्रुप में। अच्छा, तो आफ्टर दिस सेशन आप लोग वाउचर्स क्विक लैब्स के आई गेस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? वो सर जो टीम है हमारी क्लाउड को डील कर रहे हैं, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। वो अच्छा, हमें मिलते होते हैं, तो क्लाउड वो के फिर लिए। सबको ब्रीफ कर दूंगा आफ्टर हैविंग अ अच्छा, लुक ऑन। सही। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू आयशा, जावेद और वलीद हसन? कोई ऐसे क्वेश्चन करें जो कि आप कह रहे हैं कि अब स्टूडेंट एक मार्केट में जाता है तो वो क्वेश्चन उसके माइंड में होते हैं कि क्या उस तरफ क्लाउड से रेलेवेंट जॉब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, सर्टिफिकेशन ज़रूरी कितनी है, मतलब इस तरह के सवाल होते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, इस तरह के सवाल आप जो 2-3 हमारे साथ कंट्रीब्यूटर हैं इस मीटिंग में, वो मुझसे पूछ सकते थे कि स्टूडेंट्स का भी थोड़ा नॉलेज इन्हांस हो। क्योंकि मैं तो बहुत रूट से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने स्टडी भी की है, जॉब्स भी की हैं। सो आई नो कि आटे और दाल का रेट क्या है। सो आप जितना पूछना चाहते हैं, दैट्स फॉर यू, आई कैन आंसर यू क्विकली ऑन दैट, और ब्रीफली जवाब दे दूंगा कि क्या कैसे आप कर सकते हैं, या चैलेंजेस क्या है मार्केट में, एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग टू गूगल क्लाउड का स्कोप क्या है, जॉब्स कितनी आ रही हैं, इंटरव्यू कैसे होते हैं, व्हाट्सएवर जो भी है। सो आप लोग सवाल पूछें, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप चैट में भी कर सकते हैं सवाल कोई। आई थिंक सब बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो आई गेस यहाँ पे ना आवाज़ वाला ऑप्शन सबके पास नहीं होगा, तो जो प्रेजेंटर्स हैं जिनमें मैं हूँ और आयशा हैं और वलीद हैं और आदिल हैं, यही कर सकते हैं आई गेस। सो ऑन टू यू गाइस, आप सवाल करें। ब्रीफली एक्सप्लेन कुबरनेटीज। अच्छा, फहद अहमद, कुबरनेटीज ना एक डेवऑप्स डेवऑप्स प्रोविजनिंग का टूल कहूँगा सिंपली, कि डेवऑप्स एक कल्चर है, और डेवऑप्स के अंदर क्या होता है, आप अपनी एप्लीकेशन को क्विकली और एजाइल वे के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एजाइल या एनहांस या बूस्ट करते हैं। सो उसके अंदर जो टूल है जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है ना, उस टूल को बोलते हैं क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटीज आपका कंटेनर्स पे चलता है। सर व्हाट इज द बेस्ट चॉइस? बेस्ट चॉइस किस सवाल से कह रहे हैं अरसलान आप? फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा, अरसलान अब्बास, बेसिकली गूगल की एक सर्टिफिकेशन है जिसे कहते हैं गूगल क्लाउड प्रोफेशनल डेवलपर। ये भी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है गूगल की। आप एसोसिएट इंजीनियर करिए, ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं प्रोफेशनल क्लाउड डेवलपर और डेवऑप्स इंजीनियर, दोनों गूगल की सर्टिफिकेशन। तो डेवलपर्स के लिए एस जरूरी, सब एस पहले करें, एस के बाद आप डायरेक्टली जाएं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी आपकी फील्ड की है। अगला सवाल आ रहा है जी, रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन क्लाउड। सर मशीन लर्निंग का तो बहुत रोल है। अब क्लाउड सारा चल ही मशीन लर्निंग पे रहा है, बैकएंड पे। जैसे मैं आपको एक बात करूं कि आज से कुछ अर्सा पहले, कह रहे हैं 10-15 साल पहले, गूगल का जो सर्च एल्गोरिथम था ना, गूगल में आप सर्च करते थे व्हाट इज फला, सो आता था आगे खुद लिखा हुआ आया था, तुम ये पूछना चाह रहे हो, तो वो जो सजेशन आ रही है ना, वो इफ एल्स पे लिखा हुआ था गूगल ने पूरा। ठीक है, अब वो सारा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के पर चल रहा है कि वो आपके एल्गोरिथम्स को नोट कर रहा था, ये बंदा सर्च क्या करता है, कुकीज़ को नोट करता है, और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करके आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और आपको बताता है। मन स्टैक, फ्रंट स्टैक, कुछ भी हो, आप एस करें, एसोसिएट इंजीनियर करें, उसके बाद आप डायरेक्ट घुस जाएं अपने प्रोफेशनल क्लाउड डेव के अंदर या डेवऑप्स के अंदर, जो भी आपको चाहिए। अच्छा, आपके बाद फाहद ने कहा है कि इज इट सिमिलर टू डॉकर? हाँ जी, डॉकर की एडवांस फॉर्म है। जो डॉकर को मास स्केल पर मैनेज करने के लिए टूल्स में आता है ना, फाहद अहमद, उसे कहते हैं क्यूबरनेटीज। तो ये गूगल की प्रोडक्ट है और गूगल इसको बड़ा इन डेप्थ चलाता है, और ये गूगल की प्रोफेशनल आर्किटेक्चर का हिस्सा भी एग्जाम का। हु इज पेड मोर, बैकएंड डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सो बेसिकली पे उस बंदे की है जिसको अपने आप को मनवाना आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको सर्टिफिकेशन ना इंटरव्यू के डेस्क तक जरूर हो जाएगी, आई एम गारंटिंग यू। लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपने कहानी करनी है ना, वो आपको थोड़ा सा पीओसी लैब्स और प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है लोगों से काम करेंगे,
तो वो आपको एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो पे किसकी ज़्यादा है? आजकल मैं एक बात करूँ ना, पहले ज़माने में होता था, आई एम नेटवर्क स्पेशलिस्ट, आई एम अ डेवलपर एक्सपर्ट। अब वो जॉब बिल्कुल नहीं आ रही। मैं आपको टू बी फेयर सबको कह रहा हूँ, जॉब बहुत ही हाइब्रिड रोल्स पे आ रही हैं। बंदे को नेटवर्किंग स्पेशलिटी, सिक्योरिटी स्पेशल हो, क्लाउड आर्किटेक्ट हो, इस तरह की जॉब आती है, मल्टी क्लाउड पे काम आता हो। कोई भी जॉब आप इस टाइम दराज पे देखने में, सॉरी दराज कह रहा हूँ, उस पे जो है ये रोजी डॉट पीके है, आई थिंक उस स्टूडेंट पे भी यूज करते होंगे। फिर लिंक्डइन को देख लें, अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर क्लाउड तकरीबन अमेजोन गूगल, अमेजोन एयोर एयोर गूगल, इस तरह के दो क्लाउड्स मांग रहा है, एक पे जॉब नहीं आ रही। उसके अलावा डेवलपर्स के साथ भी आता है कि गूगल पे काम आता हो, अमेजोन पे काम आता हो, डेवऑप्स के टूल्स पे आता हो। सो जॉब बहुत हाइब्रिड आ रही है, सिंगल स्टैक पे जॉब नहीं आती। अब सब भूल जाए इस चीज को, बहुत ही हाइब्रिड रोल्स हैं, टफ होता है ये आईटी की फील्ड, लेकिन उस हिसाब से पे भी ज्यादा है। मतलब स्टार्टअप पे इट्स लाइक 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर स्टार्ट हो रही है अभी के दौर में, स्टार्टअप्स के लिए कह रहा हूँ, जिसको 3 महीने का एक्सपीरियंस है सिर्फ, उसकी बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट इंटर्नशिप भी की हो। Then in this session, any about cloud computing, we focus on fields too. Uh, ईमान अली का सवाल है कि ओनली अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग और वी फोकस ऑन अदर फील्ड्स टू। देखिए असल में आपकी ये फील्ड है ना, अगर आप एक डेवलपर की शो रखते हैं, सो ओके, सो डेवलपर का अगर आप शौक रखते हैं तो आप एक काम करें कि आप एसोसिएट इंजीनियर करें, उसके बाद गूगल क्लाउड प्रोफेशनल डेवलपर कर लें। उसमें गूगल आपको ना डेवलपमेंट की एजाइल टूल बताएगा, जो गूगल के नेटिव टूल्स मौजूद हैं डेवलपमेंट करने के लिए। गूगल क्लाउड बिल्ड है, गूगल क्लाउड कोड है, गूगल क्लाउड रिपोजिटरीज हैं, और जैसे गिटहब है ना, गिटहब की एक और प्रोडक्ट है गूगल क्लाउड कोड रिपोजिटरीज, वो गूगल के अंदर है। सो गूगल आपको डेवलपमेंट की एजाइल मॉडल्स और टूल्स बताएगा, मैंने जो गूगल आपको देता है, जो आपका बहुत सा टाइम बचाएंगे डेवलपमेंट करने के लिए। ये क्लाउड क्या करता है, आपको मैनेज सर्विसेज देता है कि आपका ये टूल या एपीआई हम आपको बनी बनाई दे देंगे। अच्छा, कहते हैं डेवऑप्स में एक सवाल आया कि वर्सेस मन स्टैक व्हाट वुड यू रिकमेंड? सर डेवऑप्स, मन स्टैक ठीक है, लेकिन डेवऑप्स में ना ज्यादा स्कोप है इस टाइम। सबसे ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा जॉब इस टाइम मार्केट में डेवऑप्स की आ रही है एज कम्पेयर टू मन स्टैक। आई नॉट श्योर, क्योंकि मैं जॉब करता ही ना, लेकिन डेवऑप्स की तो बहुत जॉब है, दूसरी जॉब पे डेवऑप्स लिखा हुआ, उन्होंने टाइटल ही चेंज कर दिया सबका। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेवलपर है कोई और, एक क्लाउड कंप्यूटिंग में डेवलपर कोई और, डेवलपर की स्पेशलिटी है क्लाउड कंप्यूटिंग में। मस्टैक डेवलपर की मैंने बात बता दी है। डाटा साइंसेस वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये टूल्स है ना, जो एपीआई है वो डाटा साइंस की मौजूद है। सो आप डाटा वेयर हाउसिंग, जैसे गूगल बिग क्यूरी, आपने डाटा वेयर हाउसिंग या डाटा साइंस का काम ही गूगल क्लाउड के टूल्स पे या अमेजोन के टूल्स पे करना होता है। सो डाटा साइंटिस्ट के लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग के टूल्स को सीखना बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर और फ्रंट एंड। सो मैं बेसिकली रेफर करूंगा, जो अगर साइबर सिक्योरिटी के हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग करें, वो बेहतर अच्छी कम्बो है। कह रहे हैं कि फील्ड के बारे में कह रहे हैं, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका शौक अच्छा है वो करें। मेरा इसका ये जवाब है। मेरा शौक तो सॉफ्टवेयर में नहीं था, तो मैं नेटवर्किंग क्लाउड में आ गया। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपर की बात हो रही है, गूगल में ज्यादा जॉब से रेलिवेंट है डाटा इंजीनियर और प्योर डेवलपर। गूगल में ना हाइब्रिड रोल्स आते हैं, ऐसी जॉब नहीं आती कि सिर्फ आप एक डाटा इंजीनियर हैं, आपसे कोडिंग भी मांगते हैं, आपसे डेवऑप्स के टूल्स भी मांगते हैं, आपसे काफी चीजें मांगते हैं, सिक्योरिटी का मैशअप बहुत आ रहा है आजकल, और कस्टमर एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। जो फैंग कंपनी ना, बिग बैंक्स, यहाँ पे हाइब्रिड जॉब्स होती हैं, एक नहीं होती। बेस्ट फील्ड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए यार आप ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आप गूगल क्लाउड एस करें और सीधा आप गूगल क्लाउड डेवऑप्स कर लें, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के अलावा गूगल क्लाउड डेवलपर एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन कर लें, सीधा सीधा बात है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आती है, साथ में क्लाउड की दो सर्टिफिकेशन भी की हुई है पास आपने। डाटा पाइपलाइन के लिए एंड मन स्टैक की बात हो रही है, डाटा पाइपलाइन इन चीज़ों के लिए यार गूगल क्लाउड डाटा इंजीनियर की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन उसको गो थ्रू करेंगे। स्कोप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, भाई स्कोप तो बहुत ज्यादा है, हर जॉब के टाइटल में क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड इंजीनियर लिख दिया उन्होंने, ये आप चाहे सर्च कर लें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्सेस साइबर सिक्योरिटी, आपकी शौक की बात है। क्यूएनए चल रहा है बस, आई लव बोथ, ठीक है, नॉट वर्सेस, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट सवाल थे। मैंने स्टूडेंट्स के जवाब दे दिए हैं। अब आप मुझे कोई प्रेजेंट, जो हमारे साथ प्रेजेंटर्स हैं मीटिंग के, और वो सवाल करना चाह रहे हैं अटेंडीज के अलावा? सो आई थिंक मैंने काफ़ी स्पीड में और काफ़ी ज़्यादा जवाब दिए हैं। सो मन स्टैक सीखना, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना, दोनों बेनिफिट, हाँ जी बेनिफिट देंगे। मैं बता रहा हूँ कि हाइब्रिड जॉब्स आ रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग ये बहुत अच्छा तड़का है किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए। मैं आपको सबको फेयरली बता रहा हूँ, अगर तुम सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो तो सिक्योरिटी स्पेशलिटी कर लो, डेवलपर हो तो डेवलपिंग, मतलब मन स्टैक के बंदे हो तो डेवलपर और डेवऑप्स की दो सर्टिफिकेशन कर लो, इसके बाद तड़का लगाना बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी वर्सेस एआई, आई गेस स्कोप दोनों का ही है, ये इशू नहीं है इतना। काइंडली आप टाइप कर दें बेस्ट फील्ड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, मोमिना क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल क्लाउड डेवलपर एक्सपर्ट, गूगल ये सेम है, गूगल क्लाउड डेव एक्सपर्ट, ओके।
ओके, GPT-4 सब डेवलपर्स की छुट्टी कर देगा। ये बात ठीक कह रहे हैं, जिसकी वजह से ना मतलब कि आर्किटेक्ट्स की जॉब बची हुई है अभी भी। क्या ये सच है? सच नहीं है, लेकिन जो लोग अगर चैट जीपीटी नहीं सीखेंगे वो तो गए। आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें अपने आप को एनहांस करने के लिए। सो अब मुझे अगर पाइथन इतनी अच्छी नहीं आती तो मैं धड़ल्ले से इंटरव्यू में कहता हूँ मुझे पाइथन आती है। जो लिखवाना है बताया, मैं आपको लिख के दूंगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि गूगल में वो चीज़ कैसे चलानी है। वाउचर कब मिलेगा ये आपको बताएंगे, आदिल बताएंगे। क्यों चैट जीपीटी में क्या सीखा है जन्नत फातिमा? चैट जीपीटी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी टूल है कि आप उससे सीखें कि आप किस तरीके से क्विकली चीज़ों को कर सकते हैं। कोड छोटा मोटा लिखना है, आपको वो कोड नहीं आता तो आपको आपकी अब जो फील्ड जा रही है ना चैट जीपीटी के बाद, वो ये है कि आपको हर चीज़ का ओवरऑल जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्पेशलिस्ट काम आप या थोड़ी कोडिंग शोडिंग की हेल्प आप चैट जीपीटी से भी ले लेते हैं, वो एक अच्छे आंसर बता देता है। सो अपनी कॉमन सेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉब्स होती है ना वो आपके सेंसेस से खेल रहे होते हैं, वो आपके टेक्निकल स्किल्स से नहीं खेल रहे होते। और इंटरव्यूज में आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल और कस्टमर स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी को दिखाया जाता है। काम के बारे में 30% बात होती है, बाकी सारी गेम ही होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कोर्सेज कौन कौन से जरूरी हैं? सर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बेसिक्स नेटवर्किंग और लिनक्स आनी जरूरी है। आयशा आई थिंक काफी सवालों की जवाब देनी है, अब आप बताइए एनीथिंग फ्रॉम और माय साइड और वी आर गुड टू लीव Thank अराउंड you 9 so बजने much वाले for your time. It was a very informative talk. स्टूडेंट्स के पास ना अंबार है सवालों का, लेकिन आई गेस के ना दे कैन पोस्ट क्वेश्चंस और मैं लिंक्डइन एज वेल, Yeah. और मैंने अपना नंबर भी दे दिया था मैं साइड पे एक स्लाइड में। सो आई थिंक इन्फॉर्मेशन वाज इंफॉर्मेटिव। आयशा एनी मोर थिंग यू वांट टू ऐड? काफी बच्चे ना वो बात कर रहे हैं वाचर्स के बारे में, इफ दे कैन गेट समथिंग ऑन दैट। जी, उसके बारे में we'll talk about it later आपके साथ। सही। So okay, जो भी आपके questions वगैरह हैं, you can just message him on LinkedIn और आप पूछ सकते हैं। Thank you so much for your time. Okay, so ठीक है, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। ठीक है, गुड। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू वाइंड अप। आदिल एंड आयशा एंड वलीद, एनीथिंग you want to add here or we good to leave? यस सर, आई थिंक इट्स एनफ। इट वाज अ ग्रेट सेशन। काफी सारे स्टूडेंट्स, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे। काफी सब्जेक्टिव है। बेसिकली इस लेवल पे ना स्टूडेंट्स के पास सवाल होते हैं, जरूरी है। मेंटरिंग का वो चैलेंज है हमारे मुल्क में ना शुरू से, एग्जैक्टली कि सर, यही। मेंटरिंग हमें नहीं मिलती। और हमें हमें मेरा एक बिलीव है, आई एम नॉट श्योर कि यूनिवर्सिटियाँ कितनी इस बारे में अब सही हुई हैं कि नहीं, कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पैसा कमाना नहीं सिखाती। वो आपको सिर्फ ना थ्योरी की बिल्कुल बातें बताएंगी, शायद दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करती, मेरा ख्याल है इस बारे में। क्योंकि मैंने एमफिल शैमफिल या पीएचडी तो नहीं की, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि जितना मैंने मास्टर तक किया, तो मैंने देखा है कि कोई भी इदारा तालीमी आपको, इवन पाकिस्तान का भी, वो आपको ना पैसा कमाना नहीं सिखाते। पैसा आप तब कमाते हैं जब हुनर सीखते हैं, दैट इज क्लाउड डेवलपमेंट, हैंड्स ऑन, कस्टमर कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस। ये वो स्किल हैं, ये पैसा कमाना सिखाते हैं। सो yeah. क्लाउड क्लाउड एक अच्छी एवोल्यूशन है, लोग बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैंने आपको अपना पे स्पाइक बताया है, मैं 25 से स्टार्ट करके सीधा 2+ पे गया था, और अभी तो मैं काफी ऊपर उनसे भी। तो लेकिन पॉइंट इज डेट कि क्लाउड ने मुझे काफी एज दी है, और मैंने आपको अपनी पूरी स्टोरी रियल टाइम बताई कि मैंने कैसे कैसे स्किप किया, कैसे कैसे मेहनत की। लेकिन इसमें अच्छा रिवॉर्ड है, कि रिवॉर्ड जरूर है फील्ड में, दिस इज माय गारंटी टू यू गाइस। मेहनत आपकी अपनी है सबकी, जो भी अटेम्प्ट करते हैं इन चीजों को। सो आदिल, यू वर सेइंग समथिंग, यू कैन कंटिन्यू, सॉरी। नो सर, इट्स नॉट सर। ओके, आई एम म्यूटिंग। आई थिंक नेक्स्ट स्पीकर कोई है हमारे पास जो स्टार्ट कर रही जी, यस सर, है? यस ओके, सर। मैं म्यूट कर रहा हूँ, लेट्स वेट फॉर। so we have our next speaker with us, Sara Jawad. Sara Jawad is a talented and accomplished data engineer at Jazz. Can you see my slides, my screen? नहीं, यहाँ पे लोडिंग पे है, आई गेस स्लाइड को डाउनलोड कर लें लैपटॉप में, क्योंकि गूगल या ऑनलाइन में ना ब्राउजर में ये लोडिंग बहुत होती है। तो फाइल डाउनलोड करके प्रेजेंटेशन देने वो इजी रहेगी आई गेस, क्योंकि वो लोडिंग पे चला जाता है, जी, मसला आता है इसमें। जी, फाइल डाउनलोड कर लें, वो इजी रहेगा प्रेजेंटेशन के लिए आपकी। जी,
Okay. वरना आपको ये टैब रीलोड करना पड़ेगा, ये डॉक्स वाला शायद. Okay. So our next guest is Sara Jawad. Sara Jawad is a talented and accomplished data engineer at JAS. She is also a passionate advocate for women in technology and has made significant contributions to the field. She founded the first women in tech community at her university, that is Air University Women in Computing, to support and encourage women pursuing careers in computing. Additionally, she serves as a global mentorship lead at Pakistani Women in Computing, helping to mentor and guide aspiring women in tech professionals. With her experience and expertise and dedication, Sara is making a difference in the tech industry in Pakistan and beyond. Thank you so much for joining us, Sara. Thank you, Aisha. Assalamu alaikum, everyone. I hope I'm audible. Yes, you are. Okay, so I don't have the option to share my screen. If you guys can help, actually, do 8 minutes. Okay, can you see my screen? Yeah. Yes. Yes. Okay. Thank you everyone for joining. Assalamu alaikum. I hope everyone is well. I'm really excited to be talking about data engineering. This session is going to be very beginner friendly. So even if you don't know much about data engineering, this will help you get an idea about it. And I'll be sharing step by step a roadmap that you can follow if you want to get into data engineering. So a bit about me, like Aisha introduced, I'm currently running the mentorship program at Pakistani Women in Computing, where we connect female students and people in their early career to Pakistani women in tech that are working in Apple, Google, and Microsoft. I'm also founder of my first Women in Tech community in my university. I'm a 2021 graduate from Air University. I've studied computer science, and my interests are in big data and graph machine learning. So what we'll be covering in this session and what to expect in this session, I'll be briefly talking about my data journey, what data engineering is, data engineering, क्यों important है, or components of data engineering, and how data engineering is different from data scientists or data analysts. And then we'll be discussing a little bit about जो trends आजकल चल रहे हैं data engineering में, and within data engineering जो different career pathways हैं जो आप जा सकते हो जिस पे. And then a step-by-step roadmap for you to follow. This is what I always, give to my mentees, my students to follow if they want to get into data engineering, and then some helpful resources that can help you learn those skills. And then how to stand out if you're going for a job or an interview. So how do you stand out as data enthusiast? And then we'll end with the Q&A. Okay, how I got into data engineering. In short, it started with interest in data science, and then I got into data engineering. So if I start, it started with an internship interview that turned into a blessing. So this was back in fourth semester. मुझे इतना आइडिया नहीं था डेटा का, AI का, मशीन लर्निंग का. I did know about mobile application development. उसकी तरफ ही डेवलपमेंट साइड में मुझे ज़्यादा शौक था. So I got called in for an interview by a business intelligence company. And from there, I got to know that, everybody is talking about machine learning and AI, and people, my peers don't know about it. I don't know about it there. So I was like, "Nahin, ab se I'm going to start learning about what machine learning and data science is. And even if it's not being taught to me yet, I'll still learn about it." So I went back, I did my research, I learned about data science and machine learning, and then luckily, usi summer mein ek research project opportunity I took that, and usme mujhe kafi opportunity mili. And so I started with NLP and machine learning, and usse, the interest developed, and I started getting really into big data. And then my FYP was knowledge graphs. And then I got the opportunity to work with a foreign on big data and knowledge graphs.
And I feel my personal projects really helped me in getting the job data engineer. So I didn't have in my mind कि मैं data engineering में जाऊंगी. In my mind, it was I will probably get a data science job because most of the projects that I did were in data science. But उस time trends I knew कि यही थे कि data science में in order to get it, job में आपको you need prior work experience, right? So data engineering में I landed a job as a fresh, and I'll tell you all helped me with that. I feel my personal project helped in that skill set. So yeah, I'll be talking about data engineering and how you, even as a student, can work on it from now and land a job as soon as you graduate, inshallah. So before I talk about data engineering, I have a question for you all. What do you think data engineering is? या आपकी जहन में क्या आता है जब आप सुनते हो data engineering या data engineer के बारे में? Okay, purifying data, playing with data. Okay, nice. The whole definition. Anything at all जो आपके जहन में आता है. Okay. Managing data, okay. Sorting out big data, yes. Extracting useful information, yes. Data and then using it, yes. Okay, good. So in very easy words, I'll tell you what data engineering is. And usually, okay, first I'll tell you the definition, then I'll tell you why I've put this picture. So there's this book called Fundamentals of Engineering. I highly recommend that you all read a good book. Although they've described the term data engineering really well in a very easy way, so I'll describe that to you. Data engineering is the development, implementation, and maintenance of systems and processes that take in raw data and produce high-quality, consistent information that supports downstream use cases such as analysis and machine learning. Highlighted raw and high-quality consistent words. So hota kya in very simple words, what data engineer does is he takes raw data, ठीक है, और उस पे processes लगा के they produce high quality consistent information and high quality data जो फिर use होती है in business use cases या फिर use होती है by machine learning engineers or data analysts or data scientists. So in very easy words, they are the builders of data pipelines. So the reason I put this picture and what comes to my mind mostly when I think of a data engineer is they're builders, right? They have this builder hat because they're building pipelines and they're doing all this development. So I'll talk more about it ahead. So this is what, in simple words, data engineering is. Okay, so why is data engineering important? Before I go into this, I'll give you a little bit of idea of what the data analytics domain in general is like. So आजकल क्या है कि data is everywhere and it's increasing day by day, right? So businesses have realized that it's very important to invest in analytics teams. So why data engineering has become important? It allows businesses to words. I'll talk about this ahead. But there was this research in 2017 by Gartner that determined that about 60% to 85% of big data projects, yeah, data science projects had failed, right? And why was that so? Because of unreliable data structures and no proper data infrastructure. So in easy words, आपकी data science के projects, how will they be effective if जो पीछे data ही है that is not reliable, it is not accurate, right? तो उसके लिए businesses realized कि नहीं, it is time to really focus on having a proper data infrastructure, and that is where the demand for data engineering got in. तो data engineering का भी बहुत demand है because it's very important to first have very strong data infrastructure, reliable data, and then that is being used by analysts and data scientists. So अब होता ये है in industries में आप देखेंगे कि मैं अगर अपना भी बताऊँ, in my organization even,
there is a huge team of data engineers and a very small team of data scientists, because data engineers are required. It's a must to have like the right data, and for data to be accessible to all of them, to your end users. Okay, so the demand is being increased. There you will see that there are a lot of jobs. Data engineers बहुत ज़्यादा ज़रूरत है organizations को. So yeah, so data engineering is important because it makes data accessible to end users like your data scientists or data analysts, your even be people in marketing, finance, ये सब, and also ensuring high quality data for data science teams. By high quality data, I mean reliable and consistent data. ठीक है? Okay, another question for you. What do you think is a difference between data warehouse and a database? Before I basics to data engineering, if you can tell me what do you think is the key difference, like the main difference between a data warehouse and a database? There are a lot of differences, but like a very key difference जो एक होता है. Anyone, a difference between a data warehouse and a database? How are they different? मुझे लग रहा है फहद चैट जीपीटी इधर यूज करते हैं because of how quickly the text comes in. Can keep plenty of data. Whereas holds all the data history. Yes. The new database is singular entity is a collection. Okay. Quiet for application. Okay. 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 So the key difference is the key difference, वैसे बहुत differences है, but the key difference is कि data warehouses में आपके पास heterogeneous data sources से data आते to one central repository. So in a data warehouse, you have heterogeneous data sources. ठीक है? While in database, there aren't many data sources. एक ही data source से आप data को store and organize कर सकते हो. एक example देती हूँ आपको. This will also help you in understanding कि आपको कब data warehouse की ज़रूरत होती है और कब आपको database की ज़रूरत होती है. तो let's say एक छोटा business है, let's say एक bakery है, ठीक है? अब एक bakery को data warehouse की ज़रूरत है या database की, ये सोचिएगा. So अब देखिए बेकरी है, उसमें डेटा क्या होता है? मोस्टली इन्वेंट्री होती है, व्हाट आर द आइटम्स अवेलेबल, व्हिच हैव बीन सोल्ड, हाउ मेनी हैव बीन सोल्ड, ये सब, ठीक है? सो फॉर दैट इज जस्ट वन डेटा सोर्स, राइट? देयर इजंट एनी मोर डेटा सोर्सेज. सो अ डेटाबेस वर्क्स इन दिस केस, ठीक है? डेटाबेस से उसका काम चल जाता है बेकरी का बिजनेस, और वो उससे अपनी वो सारा ऑर्गेनाइज भी कर सकता है एंड कैन टेक आउट इनसाइट्स इफ ही वांट्स एज वेल. बट डेटा वेयरहाउस, अब जब बड़ी बिजनेसेस की बात करते हैं या बड़ी कंपनीज की बात करते हैं जिसमें डेटा डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, जैसे सेंसर से डेटा आ रहे हैं, आपके वेब से आ रहे हैं, ठीक है? वेब एपीआई से डेटा आ रहा है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, क्लाउड से अलग डेटा आ रहा है. ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस, जब वहाँ से डेटा आता है और आपने उसको एक जगह पे एक यूनिफाइड और सेंट्रल जगह पे उसको स्टोर करना है, दैट इज वेयर यू नीड डेटा वेयरहाउस. एंड डेटा वेयरहाउस में आपको historical you have historical data, right? You store historical data and huge amount of data is there, and वो historical data use होता है for your analytics and BI reporting. So data warehouse is costly. It is mostly for your analytics, analytical processing. Database is operational and transactional data processing. It's not that costly, और इसमें up to date data होता है, ठीक है? So like I said, this will help you in visualizing कि data warehouse किस तरह से उसे different data sources से आता है. So ये देखिए आपके पास different data sources है. One is coming from databases, legacy systems, ये cloud से आपके पास आ रहे हैं, web services, files. All of these combined together in one central place, and that is called a data warehouse. और उसको एंड वो प्रोसेस कि वो किस तरह यहाँ से डेटा सोर्सेस से आते हैं, डेटा वेयरहाउस में स्टोर होते हैं, एंड देन वो यूज़ होते हैं बाय योर अदर
stakeholders या end users, ये सारा काम data engineer करता है of this whole pipeline. ठीक है, so now that you have an idea of Dataverse, I hope कोई questions नहीं है. Okay, so I'll come to it later, the questions. So now that you have an idea of data warehouse क्या होता है, तो अब I'm going to explain. So the very basic components of data engineering are these: data ingestions, ठीक है, कि different data sources हैं आपके पास, like I said, sensor से आ सकते हैं आपके पास, file से आ सकते हैं, आपके पास web से आ सकते हैं, cloud से आ सकते हैं, and then उसके different types होते हैं, ठीक है, how to handle those, वो भी एक data engineering उस चीज, and then data integration and transformation, और सारे different sources से जब data आता है, it should be in a unified form. Data engineer भी ये काम करता है कि उसको unified form में store करता है in a data warehouse. And by unified form, I mean an integrated form. I mean कि let's say एक ID है, ठीक है, अगर एक source से मेरे पास एक ID आ रही है, let's say source 1 से आ रही है, it is in let's say 5 digits, and that is the correct data type, and दूसरे source से मेरे पास 8 digits क्या आ रहे हैं, तो that shouldn't be the case. It should be one, एक unified होना चाहिए. अगर किसी और data source से भी कोई ID आ रही है, it should also be the digits that let's say अगर 5 मैंने decide किया तो 5 ही सारे sources से आने चाहिए. That happens by applying transformation processes. ठीक है, उसके बाद data storage का concept आता है, where you store your data. There are data warehouses, data lakes, databases, and then the concept of data processing. There is batch processing, processing streams, yeah, real-time. So yeah, just a very basic overview of data engineering. And a very, very important concept in data engineering is the ETL pipeline. So when you think of data engineering, ETL comes to mind, because the main important job of a data engineer is the ETL process. So what is the ETL process in very easy words? ETL stands for extract, transform, load. And how does this work? आप देखिए यहाँ sources हैं, ठीक है, like I said, different sources से आपके पास data आ रहा है. So यहाँ पे हमारे पास different platforms है, वहाँ से data आ रहे हैं. हमारे पास एक source है cloud and file storage का, and another source is databases का. यहाँ से data हमारे पास हम extract कर रहे हैं, and यहाँ पे we are applying transformation, ठीक है, उस पे different वो कर रहे हैं, अगर कोई missing values है वो कर दी, अगर उसको unify करना है उस पे कोई transformation apply कर दी, so that it stays integrated, and then we load it into, यहाँ पे we load into a data warehouse. So this is what ETL is, ठीक है, in very easy words. And then once the ETL is done, जब आपके data warehouse में आपके पास data आ जाता है in a very organized way, तो फिर that becomes available for reporting and analytics. So फिर आपकी teams फिर SQL querying कर सकते हैं, they can use it for their dashboards. यहाँ आप देख सकते हैं कि different बता रहे हैं, like let's say ETL के tools ये हैं कुछ, जैसे Talent हो गया, Air Query भी use होती है, data warehouse में BigQuery use होती है, Google का, Azure का, Microsoft का Azure, and then we have some BI reporting tools, Tableau, MicroStrategy, Power BI, all of them. So it's important to know what ETL is. Okay? So, and now I'm going to talk about very data analytics domain में ये सारे work, these सारे जो job roles in data, they work very closely together. How are they different from each other? So a business analyst is a specialist in data visualization. ठीक है, जो आप dashboards देखते हैं, visualization देखते हैं businesses में, वो सारा is वो business analyst देखते हैं. ठीक है, उसके बाद a bit similar, but data analyst का skill set थोड़ा technical होता है. They also use Power BI and BI tools, and they work closely with the data engineer. ठीक है, and make sure that the business requirements are being met. कोई data source करना है या कोई development करनी है, तो based on business requirements, वो data engineer के साथ communicate हो रहे हो. And the data engineer is responsible for data on premises या on cloud, उसको handle करना, all that ETL process, and also making sure data is integrated and data is available to all end users and it meets business requirements.
ठीक है, and then the data scientist is different. The data scientist applies predictions, models, machine learning models apply करते हैं, statistical apply करते हैं to analyze data. Um, and of course, they closely work with data engineer as well. अगर उनको कोई data required है, business question if they want to answer something and they want a specific data, let's say development, right? That can be done in data warehouse, yeah, by data engineer. So they work closely with the data engineer as well. And the database administrator is different from a data engineer, responsible for the whole health and the whole health of the database and monitoring it, उसकी security और किसको access देना है, data की right, किसको rights देने हैं access के data के, ये सब data administrator is responsible for. So, and the best thing in the data domain is कि let's say आप अगर data analyst में easily shift to transition to data engineer or data scientist by adding up more skill sets. I know a lot of people, even in my own organization, that were data analysts and they have transitioned to data engineering by adding in some skill sets, relevant skill sets, and some data engineers that have transitioned to data science to become data scientists. So yeah. Okay, so trends and career paths in data engineering. So data engineering के अंदर भी काफ़ी different career paths that you can go into. Yeah, different focus areas that our data engineer focuses on. ठीक है, so trends के बारे में मैं कहूँगी कि to know trends आजकल क्या हैं. मैं ये कहूँगी कि back in 2021, 2020, yeah, 2020 and 2021. I remember because I used to follow LinkedIn posts a lot, there were a lot of content on data science, analytics, data engineering का कम था content. So the trend data science. In 2022 and 2023, even अगर आप अभी देखें, if you are on LinkedIn and you check the content that's there, you will see कि data engineering पे बहुत ज़्यादा content आ रहा है. It's gaining a lot of popularity. ठीक है, and so I think as a data enthusiast, you should know the trends कि आजकल market में क्या trends हैं. So आजकल I'll talk about analytics engineer. 2023 का जो बहुत popular data engineering तो वैसे ही popular है in 2023, but now the main one of the career paths in data engineering that is very popular is in 2023 is the analytics engineer. I'll talk about it ahead. So the different आपके पास job titles data engineering होते हैं common या different focus areas that can be data architect और जिसमें वो data modeling पे focus करते हैं. ठीक है, then there's big data engineer जो कि mainly focus big data frameworks पे Hadoop, PySpark, Kafka ये सब कुछ. Cloud data engineers भी होते हैं that focus more on cloud, like or specifically on cloud. And then there are ETL developers that are more focused on the whole ETL pipeline, building ETL pipeline. उनका business के साथ इतना वो नहीं होता, they're mostly on the back end. And then comes the analytics engineer. To analytics engineer, आजकल trends ये बन रहे हैं, future ये है data engineering. Roles will combine. ठीक है, for example, I've put this meme. It's a combination of analytics engineer is a combination of data analyst and data engineer. So analytics engineer, most of the job that I do at Jazz is similar to an analytics engineer because उसमें क्या होता है, I'm looking at the tech side as well as the business side. So I know the ETL process, I'm looking at that, I'm looking at the data engineering aspect, but then I'm also looking at how is it answering business questions, are the business requirements being met, taking business requirements from my stakeholders, and then developing solutions for that. That is what an analytics engineer does. Sometimes end-to-end bhi karna padta hai. Sometimes we even work on data analysis, right? So this is gaining a lot of popularity, and this is some of the job titles that you'll find, just to give you an idea. And now the roadmap that I recommend for students if they want to get into data engineering. So a lot of people I see जो mistake करते हैं ये करते हैं कि if they want to get into data engineering, they start with Python. Now it's fine if you start with Python, but I think that it is very, very important to start with SQL if you don't know SQL. ठीक है? SQL is like the basis of
it is very, very important, ठीक है, for every data professional. So start with SQL, ठीक है, and not the SQL that we learn in universities. That is very simple. SQL में जो different आपके थोड़े complex concepts होते हैं, so Windows functions हो गए, rank हो गया, case statements, ये सारे जो थोड़े intermediate level का SQL है, work on that. Learn about relational databases, non-relational databases. ठीक है, इस slide के बाद I'll tell you where you can learn different resources that can help you in learning about SQL. But focus on first SQL, have a grip on that, and then come towards a programming language, either Python, Java, or Scala. These three are used in data engineering, but I'd recommend Python because it's widely used. So Python, and then you need to have data warehouse concepts and knowledge of ETL. So basic data warehouse concepts, जिसमें आपके पास OLTP, OLAP, different schemas का knowledge आपको होना चाहिए, star schema, snowflake schema, ये सब, and when to use them, facts, tables, dimensions, ये सब कुछ, ठीक है? So for basics, for like just starting, I think this is a really good, तीनों को अगर आप लेके चलें, is a really good start. And then once you're done with this, you can, I would say, go for basics of, and then focus on cloud. Now, cloud skill is very important in data engineering. You have to have basic of, okay, so I would recommend you pick any one of these. Yeah, AWS pick kar liya, GCP, Azure. Pick one of these, get basic knowledge about them, and कोई personal project उठाएं और उस tool को use करें. Actually use that tool to learn about cloud. I feel like अगर आप project में उसको खुद use करें, so you learn it better. Okay, so cloud, and then, but I'll say again, there are some organizations that don't use cloud, but mostly all of them, जो trends हैं, cloud ही use करते हैं in storing data, making data warehouses. But some companies like telcos, they don't use cloud because of restrictions. So उन telcos में ये होता है, telecom companies में, they store your data on premises. ठीक है, उनके data centers होते हैं. So you need to know about the industry. Next is when you're done with the basics of cloud and you've done a personal project on cloud, I'd really recommend that you get the basics of big data. Okay? How distributed computing works. Okay? Hadoop, PySpark, Kafka, इनमें से कोई भी pick one. If you can know basics about 3 of them, great. Maybe Hadoop, and get a knowledge of big data. Okay, so this is, I feel, a really good roadmap if you want to start and get into data engineering. Isme koi questions if you have, or we can even take it in the end. Okay, I'll take them in the end. Okay, so these were the roadmap. I'll tell you the resources that you can use for learning all these skills. SQL. So SQL, what helped me as a student and which I use even now, and I really, really recommend, is DataCamp. DataCamp is not free, but you can use GitHub Student. I think it's called either GitHub Student Pack or GitHub Student Developer Pack. I'm not sure, but what you do is you use your student email, usko aap link karte hain with your GitHub account, and then you get free access to a lot of different platforms. Usme se DataCamp ka aapko free access milta hai 2 to 3 months ka. So I would really recommend कि data camp के अंदर एक data engineering career track है, उसको use करें. Now why do I like data camp personally? Because उसमें practically coding हो रही होती है. I don't like from videos. मतलब if it's short videos, that's great. But I would rather that I practically code and learn something practically. So data camp really is great for that because उसमें आप सब कुछ coding करते हुए सीख रहे हो. So I'd really recommend that you check out DataCamp. It's got data engineering career track. Let's say you don't have time, you're graduating and you are looking for a job in data engineering. I'd say then go for a DataCamp ka jo SQL intermediate
the beginner one is quite basic, SQL course, but the module which is intermediate SQL, do check that out. It's really helpful, and I've actually seen कि जो उसमें concepts and that is actually being used in my day-to-day job. So for SQL, I'd recommend this for free. If you want free resources, then HackerRank is a really good platform. Either HackerRank or LeetCode. You should practice SQL problems and learn um, how you can solve SQL problems. ठीक है, because when you go for interviews, आपका SQL पे they usually test you on your SQL, right? So you need to be really good and have a grip on that. So then comes data warehouse. की जो concepts की मैंने बात की थी, you can learn that from Coursera. You can actually write data warehouse and business intelligence, and उसका Coursera में a course that comes up. There are a lot of courses. I think a few, any that you like, just pick it from Coursera. There's one in Udemy as well, a data warehousing course. Yeah, um, get it from YouTube. It's good enough. ठीक है, but having the concepts that I mentioned before, data warehouse के, those उसकी knowledge होना basics का is very important. We have Python. Python also is available. A really good module is available on DataCamp. Otherwise, you can go for HackerRank, LeetCode. Let's say you already know Python, because the basics, the data structures and you know how to code in Python. So then go for Python for data analysis, right? उसमें जो libraries use होती हैं, or the data structures that are being used for data analysis in Python, start with that. ठीक है, and then a very, very important, and I highly recommend this. When you're done with all of these, learn to make an ETL pipeline using Python. Okay, this will help you in learning the whole ETL process. Now, there are a lot of ETL tools that the industry uses, but kuch organizations also expect you to create a pipeline from scratch in Python. Okay, so you should know how to make an ETL pipeline. Python mein. It's very simple. The simplest is to make it in Python, I believe, and it's a really good, it can become a really good personal project, and it's really great for learning. Okay, so you can so there's one module on DataCamp that actually helps you in learning about building an ETL pipeline using Python. Otherwise, if you want a free resource, then you can search. Medium is a really good platform. With technical blogs, you can go to Medium and search how to make an ETL pipeline using Python and start building it. Right? इसको practically ज़रूर try करें. Okay, so a lot of students say that there's so much content out there on YouTube everywhere. Who should we, किसको follow करें? क्या चीज़, मतलब, what is the right, uh, direction or all that. So I would recommend a few of my favorite data engineering LinkedIn and YouTube content creators. These three are really great. They talk about data engineering. They create really great content. First is Zach Wilson. LinkedIn mein, he posts every day about data engineering, and I learn even in my career abhi bhi, I still learn so much. So I'd really recommend that you follow Zach Wilson. There's another one on LinkedIn, Benjamin, and it's a YouTube channel. It's called Seattle Data. I really recommend you follow this YouTube channel. It's very straightforward, and बिल्कुल industry में चीजें चल रही होती हैं, बिल्कुल उस तरह explain करता है. So I really like this, and I can really relate to this, to the videos that he makes. And then Darshil Parmar, he is on LinkedIn as well as has a YouTube channel, and his videos I think you all will really like, because इसमें वो दिखाता है कि कैसे end-to-end projects बनाने. So let's say you want to create a data engineering personal project and you don't know where to start, I'd say check out his YouTube channel and follow. I wouldn't say just look at the tutorial, but actually practically practically follow and do that project, right? Not just see the project, the tutorial, but actually implement it. And what you can do is पूरे end to end banata hai project, right? And I'd recommend you, let's say if the content creator is using a specific technology, like let's say in the end to end project tutorial में अगर वो GCP use कर रहे हैं तो आप AWS use कर लें just to learn, right? If they're using a specific data set, you use some other data set. That way you practice, you can build your own data portfolio and your personal projects. So yeah.
So yeah, how to stand out as a data enthusiast. Now, when you go for interviews, or you want to get into data engineering, I feel these are some things that really help. One is your personal projects, ठीक है, and एक end-to-end project. So जैसे data engineering में पूरा ETL process का वो पूरा project बनाना, and then उसके बाद if you make a dashboard out of that data, that is like a whole end. So having that so that you can add it to your resume, to your CV, or if you go to your interviews, you can talk about those personal projects. They really help, especially as a job as a fresh grad. Personal projects really, and the relevant internships as well. But let's say you don't have a lot of relevant internship experience. Personal projects really do help in that relevant field. Right. And then having a data portfolio. Now you can create a website and add all your data projects. If not, you can create a really presentable, let's say, a document जिसमें अगर आपने कोई भी data dashboards बनाए हैं, कोई भी data data science का project हो गया, data engineering का project, personal project हो गया, उसकी description, उसमें जो tools use किए हैं, how is it different, उसमें क्या चीज़ different आपने किया है, what was कोई impact अगर उसमें आया है तो, या कोई use case अगर वो if it's answering any business question अगर वो कर रहे हैं तो वो आप mention करें. Make a nice data portfolio. That really helps as well for you to stand out. And then GitHub में जो भी projects आप कर रहे हैं, add it to your GitHub. A lot of recruiters, a lot of companies actually look at your GitHub and assess you on it. So do keep your GitHub updated. And then work on your analytical skills. Be very curious about data. See how you could solve different problems, data problems, business problems, different use cases. To get tech, one thing that I really like about working in my role at Jazz is it makes me think outside of just tech, right? हमेशा टेक्निकली सोचना होता है, आपको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचना होता है कि how is this answering a business problem, yeah, business use case, how is this tool going to help with this business use case, because and before I told you that analytics engineers are really hyped up these days. Why? Because organizations have realized if you make a pipeline and it does really answer, yeah, meet a business requirement, it's of no use. So abhi business requirements lena uske mutabik cheeze build karna is very important. So work on analytical skills. If you're very new to, and you need to get an idea of like data and how to I would really recommend the Google Data Analytics. I think it's a certification, yeah. So certification, you don't have to do the whole thing, the whole specialization. It's maybe 7-8 courses. I just do the first or second one. It will give you an idea of how a data industry works, right? And how you can think analytically. Okay? And then later on, if you have time, because it's a very beginner course, if you have time, you can pick out relevant specialization में से जो relevant आपको मिल रही है skill set के वो आप ले लें, and you can learn from that. Next is communication skills. I think time become hai, and I'll just wrap up real quick. So communication skills, even though kuch data engineering roles mein aap bahut back end pe hote ho, but still, even if you're on the back end, when you have to present your work, you need communication skills, right? If you're presenting your solution, you need communication skills. Some data engineers have to work with stakeholders, have to work closely with most data engineers actually have to work closely with the other data teams. So for that, and stakeholder management skills. So after that, what really helps you stand out is know the industry trends, know what is happening in the industry. The best way to know that is to follow people on LinkedIn, look at the content, network with relevant people in the industry, and I really recommend reading Medium blogs. It's a great way to know trends. So yeah, so that's it. That's about it, and I hope this was helpful. And we'll take questions now, and you can reach out to me on LinkedIn if you have questions you want
any sort of guidance or anything, you can reach out to me on LinkedIn. I'll add this as well, and now we'll take your questions. Okay, I'll start from top. Major difference between data engineer, cloud engineer. Depends. जैसे मैंने आपको बताया data engineering के अंदर भी there are categories. कुछ data engineers focus more on ETL. हो सकता है वो on premises पे देख रहे हो चीज़ों को. So then that's a bit different. And जो cloud है, they are working on cloud के उस पे store करना and data warehouse सारा build करना. Generally, we've heard that bigs don't hire a specific data architect or analytics engineer, but a general data engineer. And they do all the process according to required needs. Yes, mostly आपके कुछ companies हैं, उसमें आपके focused बने होते हैं teams, data engineering के would focus on, let's say, analytics, some would focus on ETL, इस तरह के होंगे. But जो छोटी companies है, let's say, even startups है, उसमें आपको फिर सब कुछ देखना पड़ता है. आपको फिर ETL भी देखना पड़ता है, आपको analytics भी देखना पड़ता है, आपको cloud भी देखना पड़ता है, big data processing भी देखनी होती है. तो इससे भी होता है. But just to give you an idea कि ये भी different होते हैं, and once you get into data engineering, you can choose these different pathways. There's actually so much to learn in data engineering and so many paths to go into. So yeah, probability models should learn before start learning data. Statistics and probability models, I feel, is for data science and not for data engineering. It's not related. जो मैंने आपको roadmap बताया, if you follow that, then it's good enough. Okay, I've answered data engineer versus cloud engineer. वैसे data engineers do use cloud platform. So really, it's just specific naam diye hote hain. So it's not much of a difference because आजकल every data engineer does use cloud. What about open source projects in data engineering? Open source projects. Can you elaborate this question? Because I'm learning under for a few months. Well, I can't say much now because मैंने बहुत पहले इस पे काम किया था. So if you're interested in it, then that's great. But abhi I don't know what the trends are these days on web app. I do think Flutter. I think Flutter is very popular, but again, I can't say much on that. So what kind of data we mostly work with? Yeah, this is a really good question. Up telecom mein, there's a huge amount of data. Okay, I can't tell you exactly what sort of data, but I can say transactional data hota hai and very different sort of data. Okay, think of like many different sources. Okay, think of कि आपके ऐप से भी डेटा आ रहा होता है, आपकी demographics हो गए. There's so many data sources I can think of, but yeah, that's telecom is a really great way to know कि different sources से data आते हैं. Which Python libraries are mostly used for data? I know pandas, numpy that is being used. Python में pandas, when I was making an ETL pipeline, pandas worked really great. So you can use that. Use for visualization. There are different tools that you can use for visualization. Industry में Tableau भी use होता है, Power BI भी use होता है. So any of the two works. Where to get presentation slides? I can share these presentation slides with the organizers. What is the best first programming language for software engineers? I think Python is really great if you want to start. It's really easy, it's really great, and it's widely used. What are your day-to-day tasks as a data engineer at Jazz? Okay, so like I said, jo analytics engineering wala part that I talked about, a lot of my day-to-day is like that. But aajkal, so data engineering, once you get in there, your day-to-day will be very different. Maybe kuch months
थोड़ा एनालिटिक्स साइड पे काम करेंगे, मे बी कुछ मंथ्स बाद आपको किसी प्रोजेक्ट पे डाल देंगे एंड यू विल बी वर्किंग ऑन डेटा मॉडलिंग. सो दीज डेज थ्रू डेवलपमेंट साइड इस डेटा वेयर हाउस पे डेटा वेयर हाउसिंग पे काम कर रहे हैं. सो like about engineering, there's so many different areas that you can explore within data engineering. Should we worry about our data? Don't worry, it's all safe. uh, okay, so in my case, the key skills that they expected from me was really good SQL, and that I worked in worked with databases, okay? And that I had a very strong knowledge of data warehousing. Okay, they expect you to know what all those concepts of data warehouses. हमारा काम ज़्यादातर SQL, they really emphasized on SQL. Other than that, a little bit of knowledge on big data, and then I think the personal projects. Just may I worked on data science projects. I think those really help in showcasing them and what you've learned from that. But in interviews, I think what really helps is when you demonstrate your personal projects and say what you learned from that. Um, and if you've solved any problem or use case. No, statistics is more for data science. So why telecom companies don't have their servers in Pakistan? What does that mean? Telecom companies, if you're asking about how they store data, they have data on premises. Do you need data structures and as a data engineer? Yes, you should. Basics. Like Python में जो आपकी basics होते हैं, right? SQL, there was a really good course if I remember, I'd definitely mention, but जिसमें hashing वाला concept, listening, इस type की data structures में अगर आप search करें, that would be great. Before I got into jazz, I worked on an ETL pipeline, but it was a personal project. Most of my professional projects were on data, big data. I think the big data aspect, because it's relevant to data engineering. मेरा क्वेश्चन है सारा यहाँ पे अब्दुल फहाद है. सो द क्वेश्चन इज दैट कि पाकिस्तान में ना स्टार्टअप्स का बूम बहुत है अभी. सो छोटे छोटे स्टार्टअप ना बाहर से लोगों से काम कर रहे हैं, लाइक यूरोप साइड से, यूएसए साइड से. तो वहाँ पे डाटा के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं. सो उसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्लाउड बेस्ड जो डाटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस या डाटा लेक के सोल्यूशंस इस्तेमाल हो रहे हैं, या उसमें क्या स्कोप है ज़्यादा. क्योंकि पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टअप ज़्यादा है, तो दे कांट अफोर्ड अ डाटा वेयर हाउस डेटा सेंटर, एक्सपेंसिव हो जाता है. तो क्लाउड पर जाना आसान या सस्ता रहता है आपके क्लाइंट्स के लिए, या तो ऑन परमाइस पे सस्ता रहता है फॉर द न्यूबीज या जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए. बिल्कुल, it's a good question. वो से जो of course ज़्यादा costly अगर आप on premises रखें, mostly जो बाहर के companies हैं, यूरोप हैं, वो सब are using cloud for storing their data warehousing के लिए. एक तो it saves a lot of costs. It's very fast. So that is why it's a really important skill as well, cloud की. Telecom companies या कुछ मोस्टली टेलीकॉम ही होती है, उन पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है कि उनका डेटा के नॉट वो आप बाहर पाकिस्तान के बाहर नहीं रख सकते, राइट? तो क्लाउड वाला एस्पेक्ट आप फिर उसमें नहीं यूज़ करते. दैट्स वाई, एंड वो एंटरप्राइज लेवल है, तो दे कैन वो जो कॉस्ट है वो उसको मैनेज कर सकते हैं. बट मोस्टली स्टार्टअप्स हो गई, आई इवन सीन स्टार्टअप्स, दे ऑल यूज़ क्लाउड, दे यूज़ GCP, मोस्टली GCP देखा है मैंने. उस पर डेटा वेयर हाउसिंग करते हैं. Azure they use. So yeah, a lot of cloud, I'd say. I hope I answered. Okay. Thank you so much for your time, Sara. We have our next guest with us. Thank you, Hafiz. Hafiz.
Okay, so our next guest is Munsif Raza. Share the screen. Hello everyone, I hope that I'm audible Yes, you are. Just a second. Okay. and voice is also clear. Yes, yes. So let me introduce you first. Okay, so with more than 2 years of experience in the field, he has developed a solid foundation in data analysis, visualization, machine learning, and deep learning. And besides that, Munsif is also an active member in communities such as IEEE, GDSC, and MLSA, where he has mentored and guided over 5,000 students. He is a captain at AWS Cloud Club MUET. And so thank you so much for joining us. Thank you so much for this nice introduction. Hello everyone, let me just share my screen. I hope that it is visible and my voice. Um, you can Okay, see good. the slides. Okay. Okay, let me start with a brief introduction of mine. By the way, she has given a good one. So मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा नीड है, but I am मुझसे present. And let's start for today's Your voice session. is not clear. Okay, it's like, how is it now? Better. Okay. Okay, guys, for today's session, our agenda will be we will be talking about some buzzwords that are in the market and are sometimes unclear to students. And then we will talk about data science, data analysis, life cycle of data science, and why you should for data science for your career. And then, like, if you are going for data science, what you have to learn for that. And at the end, we will have a question answer session. And after the session, I will be sharing you with a roadmap that will be having all the courses that you need to learn. And those courses and all those resources are free. So like there's no need of any like पैसे देने की कोई वो नहीं होगी आपको. Everything is free. And courses will have certifications as well, like certificates as well at the end of those courses. So we will talk about, first of all, artificial intelligence, machine learning, deep learning, and data science. To be very honestly, when I was starting on all these things like data science, and like I started it as a artificial intelligence engineer, but then like switched to data science. But I was very unclear and like confused in these words, among these words. And I was like, I thought like data science is a bigger umbrella, and then under that umbrella is artificial, and under that umbrella is machine learning, and then deep learning. So today we will clear all these buzzwords so that you have a clear understanding between what is the difference between all of these. First of all, talking about artificial intelligence. Now, artificial intelligence is making the machine, like making a machine to act in a certain way with having a logic behind that action. Okay, there's a definition of artificial intelligence given by Wikipedia that says that artificial intelligence is the intelligence demonstrated by machines is opposed to the natural intelligence displayed by animals and humans. Now, our जो natural intelligence होती है, whenever we do something, there's always some logical reasoning behind that action. For say, if you are like going for a walk, you are going there somewhere, or like you are taking something or putting something, there's always logic and reason behind that thing. Now, in artificial intelligence, we make machines to act in a certain way, but when that machine is acting in that certain way, it should have a logical reasoning behind that action.
Now let's put this thing in more simpler words by giving an examples. For say एक मोटर होता है ना, वो सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा होता है. लाइक वो मोटर मूव कर रहा है, बट दैट मोटर डज नॉट हैव एनी लॉजिकल रीजनिंग के वो राउंड राउंड मूव तो कर रहा है. व्हाई इट इज मूविंग, सो उसके पास उसका आंसर नहीं है. बट अगर कोई मशीन कोई सर्टेन एक्शन कर रही है, फॉर से एक रोबो बनाया है हमने जो एक एक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाता है, तो वहां से ए से बी तक जाने के लिए जो उसके पास एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि आई वेंट फ्रॉम ए टू बी बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज ऑफ दैट लॉजिक, then that machine is artificially intelligence. I hope that it's not like complex and you guys got something out of that. Okay, clear, better. And then there comes machine learning. Now machine learning is the subfield of, now in artificial intelligence, as we discussed, that we make machines to demonstrate the natural intelligence. Now natural intelligence भी हमारे पास एक सर्टेन लर्निंग के बाद आता है. लाइक जब हम बच्चे हुआ करते थे तो वी वर नॉट सो इंटेलिजेंट. हाँ, हमें लाइक पैदा होते ही एक शॉर्ट इंटेलिजेंस होती है, लेकिन देन वी लर्न ईच एंड एवरीथिंग. सो मशीन लर्निंग के अंदर व्हाट हैपेंस इज दैट वी मेक मशीन टू लर्न थ्रू डेटा एंड एक्सपीरियंस. Now I'm using two words here, is data and experience. Machine learning has three types: supervised and reinforcement learning. Now, in two of the supervised and unsupervised, data is used to make the machine learn. And then in reinforcement learning, experience is used to make the machine learn. I hope that it is clear. That, like, I know that these are some like complex terms maybe for you guys, but let's be with me. And then deep learning is also making the machine. डीप लर्निंग एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग का, जिसके अंदर हम मशीन को सिखाते हैं. देखो, इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं. मशीन लर्निंग इज लाइक जब हम छोटे होते थे, हमें सिखाया जाता था कि बेटा दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, दिस इज ऑरेंज. वो क्लास के अंदर 5 फ्रूट नेम्स, 5 कलर नेम्स, ऑल दीज थिंग्स वर बेसिकली मशीन लर्निंग. ठीक है, इंसान के लिए, समझ रहे हो? एंड वी डू सेम फॉर मशीन्स. डीप लर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर भी हम मशीन को सिखा रहे होते हैं, बट द थिंग इज दैट वी यूज सर्टेन मॉडिफाइड एंड कस्टमाइज्ड मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स जो डिपिक्ट करते हैं ह्यूमन फंक्शनैलिटी को. नाउ हमारे जो फंक्शनैलिटी को, हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो न्यूरॉन्स को यूज करते हैं. न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बना हुआ होता है, एंड जो भी हमारी चीज हो रही होती है वो डेटा उन न्यूरॉन्स के अंदर से क्रॉस हो रहा होता है, एंड होल कंप्यूटेशन इज डन इन दीज न्यूरॉन्स. डीप लर्निंग के अंदर भी हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं, जिनके थ्रू हम मशीन को सिखाते हैं. आई होप दैट इट इज क्लियर. आई वांट टू सी योर क्लियर एंड ओके मैसेजेस in chat. Anyone please? Yes, yes, you are audible. And I hope that these things are clear. लगता है मैं बहुत ही बोरिंग बंदा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा शायद. नहीं, वो सुन रहे हैं. आई थिंक वो बोल नहीं सकते आपको, तो वो चैट कर रहे हैं सारे. तो हाँ, तो प्लीज गाइस, एनीवन प्लीज जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन नो कि आपको समझ आ रही हैं बातें, या मैं वैसे. अच्छा, इसको पूरे कंटेक्स्ट को, ये सारा डायग्राम है, इसको आप चैट जीपीटी के तरीके से समझाएंगे. चैट जीपीटी किस तरीके से इस मॉडल पे अप्लाई होती है, क्योंकि वो इसी मॉडल को यूज कर रही है ना असल में. डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल को फॉलो करता है वो सिस्टम. ऐसे ही है. देखिए, चैट जीपीटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. वो एक छोटा सा चीज नहीं है. एंड इफ आई विल एक्सप्लेन चैट जीपीटी regarding this thing, so I will need more time and more elaboration on different things, but in very simpler terms,
बेसिकली चैट जीपीटी जो है वो एक मॉडल है, एक ऐसा बच्चा है जिस बच्चे को सिखाया गया है कि भाई ऐसा 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 डेटा है, बेसिकली बहुत सारा डेटा दिया गया है जहां से उसने सीखा है। वो एक जनरेटिव मॉडल है। उसने क्या किया है कि अब आप जो भी डेटा देते हो ना, उस डेटा को मद्देनजर रखते हुए वो प्रोसीडिंग आफ्टर जो उस डेटा को जो आपने डेटा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वो आपको एक आंसर देता है जो उसने डेटा बेसिस जो पहले उसकी डेटा के थ्रू ट्रेनिंग हुई थी ना। जैसे बच्चे को हमने सिखाया है ना कि बेटा ये ऑरेंज है, ये बनाना है, ये एप्पल है, तो फोर्थ से मैंने आया था कहीं पे कि यार ऑरेंज अब बनाना का कलर जो है वो येलो होता है, किसी आर्टिकल में किसी वीडियो में कहीं पे ये चीज था, चैट जीपीटी ने देखा था। अभी मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना, तो वो जवाब देगा क्योंकि उसने लर्न किया हुआ है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है। अब इसको अगर मोर डेप्थ जाएंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अदर स्टूडेंट्स आई गेस। This session for beginners, that's why. लेकिन बार इन शॉर्ट उसमें भी एआई और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है उस चीज के अंदर। Exactly. इसी Okay, context guys. में Now let's come to the data science part. Now, basically, data science uses artificial intelligence, machine learning, and deep learning part. But data science is not whole about all of these things. It is more of some different things as well. So, like इसके अंदर artificial intelligence होता है, लेकिन डेटा साइंस इज नॉट ऑल अबाउट दीज थिंग्स, उसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी आती हैं। So let's discuss what is actually data science. Now, this is a long definition of data science by IBM that says data science combines maths and statistics, specialized programming, advanced analytics, artificial intelligence, and machine learning with specific subject matter expertise to uncover actionable insights hidden in organizations' data. These insights can be used I guess he has some internet issue. He disconnected. Yeah. Um, Hello, Munsif. Sorry, guys, I got disconnected. I hope that I'm audible. Yes, you are audible. Okay, okay, okay. Now, see, ये तो बहुत बड़ा एक लंबा सा definition था इसका. By the way, my screen is also shared. I hope. I can't it? see your screen. Is my screen shared? No. Okay. Now is it visible? Yes. I hope that slides are visible. See, Yes, slides are ये visible. बहुत एक लंबा सा definition हमने पढ़ा, but if we like explain this thing in more simpler words, it says कि हम computer science, mathematics and domain knowledge को use करते हुए एक organization का data जो पड़ा हुआ है उसको एनालाइज करते हैं एंड उसमें से की इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं बिजनेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो दैट दे कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दोज इनसाइट्स. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल. फॉर से एक मॉल है या एक छोटा सा मार्ट है जिसके अंदर रोज का ट्रांजैक्शन होता है डेटा का, ठीक है. उस डेटा के अंदर अगर फॉर से यू आर परचेजिंग समथिंग तो उसका एक ट्रांजैक्शन होता है, बिल बनता है जिसके अंदर आपका डेटा सेव होगा कि लाइक एक कस्टमर आया था, मेल था या फीमेल था, ये डेट था, ये डे था, इसने ये खरीदा था, ये उसका रेट प्राइस था, ठीक है. एंड उस मार्ट ने बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, फॉर से मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, मुझे वो डेटा दिया एंड दे सेड दैट कि लाइक हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर सिस्टम. मे बी समटाइम्स वो हमें एक ओपन क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप हमें ऑप्टिमाइज करने में हेल्प आउट करो, या फिर वो कुछ अपना एक सवाल दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं कि फॉर से कि अगर हम हमारे पास जो है वो
मेल स्टाफ है, फॉर से अगर हम उस मेल स्टाफ को फीमेल स्टाफ में चेंज कर दें तो हमारे सेल्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, फॉर से। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन को अगर हम लेके चलें तो फर्स्ट से हमें उन्होंने डेटा दिया, मैंने उस डेटा को एनालाइज किया एंड देन मैंने आई टोल्ड देम कि आपके पास ना फीमेल कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू मेल कस्टमर्स। नाउ व्हाट दे विल डू ऑन दैट इनसाइट, लाइक उस इनसाइट को अगर अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनसाइट कि अगर फीमेल कस्टमर्स ज़्यादा आ रही हैं तो डिज़ाइन द मार्ट इन अ वे कि फीमेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। डिज़ाइनिंग ऐसी हो, कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे हों, या ऐसी ऐसी चीज़ें रखो जो के लिए सेल की जाती हैं एंड मेल कस्टमर्स की वाली चीज़ें कम रख, ठीक है। या फॉर एग्जांपल उन्होंने जो हमें डेटा दिया कि लाइक फॉर से एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास जो है वो मेल स्टाफ है लेकिन इफ़ वी लाइक हम उसको चेंज करते हैं और फीमेल स्टाफ रखते हैं पूरे मार्ट के अंदर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल्स के ऊपर। नाउ ऑन दैट थिंग वी विल डू प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड देन वी विल फाइंड आउट कि कितना सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। आई होप दैट ये एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल था एंड यू गॉट टू नो कि डेटा साइंस का जो एक एप्लीकेशन है वो कैसा होता है। Someone is saying that not audible. Am I audible? Yes, you are audible. उनके connection में मसला होगा कोई. Okay. I hope guys that this thing is clear to you कि like data science का एक छोटा सा application का हमने example दिया। Okay, let's move ahead. Now you will say that oops कि ऐसा तो हमने कुछ और भी सुन रखा है एंड दैट इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर भी सेम ही होता है कि यू गाइस डू डेटा विजुअलाइजेशंस, डेटा preparation, transformation, and then you extract out some insights and then you provide those insights to the organizations so that they can use those insights for. Now there's a short difference between data analysis and data science, that is in data analysis you use the data that is existing data, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा पड़ा हुआ है या आउटर सोर्सेस से आपने जो, यानी कि सिस्टम के पास जो डेटा पड़ा हुआ है बाहर से आता है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आता है, उसी डेटा को आप यूज करते हुए एनालिसिस करते हो। एंड इन डेटा साइंस यू कैन डू प्रिडिक्टिव एनालिसिस एज वेल। फॉर से जैसे हमने बताया ना कि उन्होंने कहा कि हमारे पास मेल स्टाफ काम करता है एंड ऐसे ऐसे सेल्स हमारे आते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये चीज इंप्लीमेंट ही नहीं की है कि फीमेल स्टाफ को रखा हुआ हो एंड देन दे गेट टू नो कि उनकी सेल्स ऐसी होती हैं। इट मीन्स कि डेटा साइंस के अंदर आप ऐसी डेटा के साथ भी प्ले कर सकते हो जो आपने खुद प्रिडिक्ट करके जनरेट किए। प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको बोलती है कि हम हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम बिल बोर्ड्स लगाते हैं डिफरेंट शहरों के अंदर जो है ना, वहाँ पे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन देते हैं कि इफ़ वी आर स्विचिंग दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग तो हमारी सेल्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। नाउ दे गाइज have not implemented this thing in their system, but we will be doing a predictive analysis. We will do predictions and then we will analyze those predictions. I hope that this thing is clear to you guys. By the any point you guys think that there is something that is disturbing or any question you are having, please do ask. Okay, this is not. I hope that this is clear to you guys. Guys, you can write clear in the message. I in the hope chat that box. anyone, just one person, so that I can move ahead. It will help me out. I Okay, think thank you it's so much, clear. You Mudassir. can move on. Okay, so this Yeah. is data science life cycle. First, say you are going to be a data scientist. तो ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के काम होंगे जो आप करने वाले होंगे. First of all, the cycle starts with this step, that is business understanding.
नाउ जैसे हमने बताया कि फॉर से यू आर, हमने पहले यहाँ डिस्कस किया था कि डेटा साइंस के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए, यानी कि technical person. You should have a good understanding of mathematics and statistics. And the third thing is domain or business knowledge. For say आप एक data scientist हो, जो आप एक बायोलॉजिकल लैब के अंदर काम करते हो, उनकी डेटा को एनालाइज करते हो. नाउ फॉर से उन्होंने आपको ब्लड सैंपल्स दिए हैं, उनको आपको एनालाइज करना है, एंड यू गाइस डोंट नो कि व्हाट इज हेमोग्लोबिन, व्हाट इज like iron in the blood, oxidation level इतना हो तो क्या होता है blood का. So if you are not having the basic understanding of that business, then if you will do the analysis, आप एक facts and figures करने के बाद आपको मिलेंगे, graphs मिलेंगे, but you will not have ability to to understand those graphs, या उन graphs से आप extract out कुछ नहीं कर पाओगे if you are not having the business knowledge. फॉर से आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए काम करते हो, एंड वो आपको बोलते हैं कि हम एक अपनी इंजन जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं. तो इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट लाइक द पार्ट्स ऑफ द इंजन, लाइक horsepower or the other things that constitute, like those are the parts of the engine, अगर आपको उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप, लेकिन you will not be able to deliver the net result कि उसका नतीजा क्या निकलता है. ठीक है, तो for that the first data science life cycle is business understanding, कि आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो उसको अंडरस्टैंड करना होगा पहले आपको कि ये क्वेश्चन है, आई हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन. इन डेटा कलेक्शन यू कलेक्ट द डेटा, रिक्वायर्ड डेटा जो आपको यूज में आएगा, लाइक यू विल यूज टू सॉल्व दैट मिस सॉल्व करने जा रहे हो, उसके लिए आप जो डेटा यूज करोगे वो आप कलेक्ट करोगे. नाउ डेटा कैन बी लाइक आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा जिसका आप काम कर रहे हो, या फिर दे विल से कि आप बाहर का एक्सटर्नल डेटा आप यूज, आपको वो खुद जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है. एंड यू गाइज रिसेंटली लाइक गॉट टू नो अबाउट द डेटा इंजीनियर्स, लाइक डेटा engineers collect the data for us, for you guys being a data scientist. ठीक है, तो डेटा कलेक्शन के बाद आता है डेटा प्रिपरेशन का पार्ट. नाउ डेटा जो होता है रियल वर्ल्ड के अंदर वो मेसी डेटा होता है, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं, उसके अंदर आउटलायर्स हो सकते हैं. आउटलायर्स मींस के दोज थिंग्स दैट लाइक आर नॉट कॉमन, फॉर से नॉट एवरेज. फॉर से एक फॉर्म हमने बनाया था कि लाइक स्टूडेंट्स की जो है वो एज पूछी थी, एक बैचलर्स के स्टूडेंट की एज पूछी थी, who was writing 25 years but mistakenly उसका टाइपो एरर हो गया and he has written 125. now एक बैचलर्स के स्टूडेंट की एज 125 years कैसे हो सकती है, and it is an outlier. So outlier is something that is not like common in all the other data points. तो वो हमें क्लियर करने होते हैं आउटलायर्स को. फॉर से हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, उनको आपको सेम डेटा टाइप्स के अंदर लाना होता है, एक सेम स्टैंडर्ड के अंदर डेटा को लाना होता है. फॉर से जैसे डेट का होता है, सम फॉर्मेट्स आर ईयर मंथ डे, सम फॉर्मेट्स आर डे मंथ ईयर. सो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पूरे डेटा को लेके आना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपको एक फाइल मिला जिसके अंदर ईयर मंथ एंड डे था, एंड दूसरे के अंदर डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में था, तो यू हैव टू लाइक कन्वर्ट बोथ फाइल्स इन वन फॉर्मेट. ठीक है, तो बेसिकली वी प्रिपेयर दैट डेटा फॉर फर्दर प्रोसेस. Now the next step is exploratory data analysis. इसके अंदर क्या होता है कि you analyze your data, कि हमारे डेटा के अंदर क्या क्या है, कितने वैल्यूज हैं, उनके क्या मीन मोड मीडियंस हैं, कितना एवरेज है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, वो डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो बेसिकली यू मेक ग्राफ्स, यू मेक चार्ट्स एंड गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर डेटा. Now the next thing is modeling. You do modeling using the machine learning and artificial intelligence. आप जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हो यूजिंग दैट डेटा, एंड अगर आपने वो डेटा सही से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो आपका मॉडल अच्छा नहीं बन पाएगा.
सो यू मेक मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर से, जैसे हमने प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बात की कि फॉर से एक आप बायोलॉजिकल लैब के अंदर काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ब्लड सैंपल्स होते हैं तो उनको ये वाला डिजीज होता है, फॉर से एक्स डिजीज, एंड अगर ऐसे ऐसे ब्लड सैंपल्स होते हैं तो उसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं तो उसको ये एक्स बीमारी नहीं होती है। तो यू विल मेक अ मॉडल के, हमें एक मॉडल बना के दो जो प्रिडिक्ट आउट करके बताए हमें कि इस बच्चे को ये बीमारी है या नहीं है। तो वो आप मॉडल बनाते हो, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हो, ठीक है। एंड देन यू डू मॉडल एवेल्युएशन कि हमने जो मॉडल बनाया है वो बेसिकली कितना अच्छा है, हाउ वेल इट कैन परफॉर्म, ठीक है। एंड देन यू डू मॉडल डिप्लॉयमेंट। नाउ आपने एक मॉडल अपने सिस्टम के ऊपर बनाया था, आप वो किसी एक सेंटर पॉइंट पे वो डिप्लॉय करके देते हो ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट दे कैन यूज दैट एज वेल। आई होप दैट इट इज क्लियर। एंड Guys, is it clear? So there's some questions. continues. You are explaining very simple way. Thank you so much, Sultan. Oh, I'm not a math guy. हाँ भाई, अगर मैथमेटिक्स नहीं आता है तो it will be difficult for you, because mathematics is very very necessary in this thing. Is data analyzer a developer in terms of coding? आई वोंट से कि डेटा एनालिस्ट जो होता है वो एक डेवलपर होगा, लाइक ही शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग, because you are going to do data analysis using the Python. If you are going to, then you should have understanding of the programming language. Otherwise I don't think so that he should have good understanding of logics behind a programming language. Because like आपको क्या होता है कि if you are doing analysis using some programming language, तो उसके अंदर libraries बनी हुई हैं, everything is like built in, you have to just use those things, so you should have understanding कि वो चीजें just use कैसे करनी है. This will make data very hard. Yes, it will. We will discuss about this thing as well. Okay. Now you might say, okay, you told about what is data science, what is the difference between all of those things, and then like what is the cycle of a data scientist if he is doing some project. But क्यों इतना हमें थका रहे हो भाई? ये चीज हमारे किस काम की है? Why we should go for this thing? You know, here are some like things that you should consider first. That is, according to Harvard Business Review, data science is the sexiest job of 21st century. High demand in the market and high salaries. नीचे आपको stats दिए गए हैं जिसके अंदर आपको पता चल जाए कि कितनी jobs हैं and average salary क्या है. Now the thing is that let's discuss कि इसकी high demand इतनी market के अंदर क्यों है and salaries भी high क्यों हैं. The thing is that कि मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम करता है. इफ समथिंग लाइक सरप्लस के अंदर मार्केट के अंदर आ रही है, लाइक सप्लाई उसकी हाई है लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, लोगों को चाहिए नहीं है, ठीक है, तो वो चीज चीप बिकती है. एंड समथिंग अगर वो मार्केट के अंदर कम आ रही है एंड उसकी डिमांड ज्यादा है तो वो महंगी बिकती है, ठीक है. डेटा साइंस के अंदर जो है वो सप्लाई का शॉर्टेज है. Someone asked a few days or maybe months ago from me that आप ये कह रहे हो कि मैं किसी के साथ ये डिस्कस कर रहा था, एंड ही सेड दैट कि आप ये कह रहे हो कि सप्लाई जो है वो शॉर्ट है, बट अगर हम लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो हर दूसरे बंदे के प्रोफाइल पे ये लिखा हुआ है कि आई एम अ डेटा साइंस एंथुसियस्ट एंड एआई एंड एमएल एंथुसियस्ट. तो आप कैसे कह रहे हो कि सप्लाई जो है वो कम है? आई सेड दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चन विद लाइक अ क्वेश्चन. एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको क्या लगता है कि जिस बच्चे ने या जिस इंसान ने ये चीज लिखा हुआ है उसको कितनी डेटा साइंस आती है, डेटा साइंस की कितनी अंडरस्टैंडिंग है? बेसिकली डेटा साइंस इज समथिंग दैट इज लाइक बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो इसके अंदर बहुत ही कम बच्चे आते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट के डेटा साइंस को आपको लर्न करने के लिए एक इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल तक जाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 1 to 1.5 year ऑफ लर्निंग. एंड
on the same time कि आप other hand आप web development सीख रहे हो, mobile application development सीख रहे हो, and all those other things that are common in the market, so you need only 6 to 7 months to like grip those subjects and be an expert in those subjects. तो इसीलिए जो है वो क्या होता है कि बच्चे जो है वो पीयर प्रेशर के अंदर उनके फ्रेंड्स ने जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया था एंड दे आर नाउ अर्निंग विद इन 3 to 4 months एंड यू स्टार्टेड लर्निंग डेटा साइंस एट द सेम टाइम, लेकिन आपको 3 से 4 महीने हो चुके हैं, आपको तो अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं इस जर्नी के अंदर किस पोजीशन पे हूँ, and you get discouraged and then you leave and you think कि दोस्त यही कर रहा है, पैसा भी इसी के अंदर आ रहा है, तो let's do this thing, ठीक है. तो that's why कुछ बच्चे इस threshold पोजीशन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उस पेयर प्रेशर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो they leave this thing out, ठीक है. तो आई वुड से कि डेटा साइंस का जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है, एंड इफ़ यू आर हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग एंड गुड एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, तो फिर आपकी डिमांड ही डिमांड है भाई, ठीक है. आई विल गिव माय एग्जांपल, लाइक आप अगर फॉर से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, यू नीड टू डू अ ग्रेट प्रोजेक्ट फॉर क्लाइंट टू अर्न लाइक 40 to 50K, ठीक है. बट इन डेटा साइंस लाइक मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट जिसमें मुझे हार्डली 3 to 4 hours लगे एंड आई हैव अर्नड दिस अमाउंट ऑफ लाइक रुपीज. तो मार्केट के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड अगर आपको इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोप इसके अंदर. आई होप दैट इसने आपको मोटिवेट किया इस चीज़ ने. Okay, I guess कि as you know, Sultan has written this question that as you said, you need knowledge of business. How is it possible? Should we collect it by ourselves? This question is interesting one. And other question is difference between data analysis and data science. So we have discussed this thing out. ठीक है, बाकी जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, जो है बिजनेस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग. नाउ सी, जब आप किस बेसिकली डेटा साइंस हर फील्ड, एवरी फील्ड, जो भी फील्ड इस वक्त एग्जिस्ट करता है उसके अंदर जाहिर सी बात है डिसीजन मेकिंग होती है, एंड देन दे कैन यूज डेटा टू इम्प्रूव देयर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है. तो फॉर से अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात की, बैंक हो सकता है, मेडिकल की फील्ड के अंदर ये यूज हो सकता है, ये फाइनेंशियल फील्ड के अंदर यूज हो सकता है, ये किसी भी बिजनेस के अंदर यूज हो सकता है. अब आपको उस बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग कैसे लेना होगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर आउट करते हो कि ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, ठीक है. डिफरेंट बिजनेस पर्सपेक्टिव्स को आप एक्सप्लोर करते हो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू. Then you get to know कि this is something that excites me and I want to be in this thing, ठीक है. For say I have tried a lot of things and but I am very very interested in financial data कि like invest कैसे हो रहा है, loss कैसे, profit कैसे, gain कैसे, taxes क्या होता है. I am very much into this thing and this thing excites me a lot. So I most of the time now work on this type of data, but I have worked on different type of data. Like recently मेडिकल की फील्ड के अंदर एक प्रोजेक्ट किया था, इंडोनेशिया के अंदर एक कंपटीशन था जो हमने विन भी किया था, एंड वी सॉल्व्ड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके जो इमेजेस होते हैं उनको यूज करते हुए एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया था दैट कैन प्रेडिक्ट द हेल्थ ऑफ द बेबी इनसाइड, ठीक है. तो हमने वो करके देखा, लेकिन आई गॉट टू नो कि लाइक मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल डेटा है. तो आप एक्सप्लोर आउट करोगे डिफरेंट फील्ड्स को, फिर आपको पता चल जाएगा कि दिस इज समथिंग दैट क्लिक्स मी और दैट गिव्स मी दैट किक.
I hope this is clear. Now let's move ahead. The next important thing is that के students को जब कोई चीज पता चल जाता है कि this is something that I have to go for, they stuck on that thing कि start कहाँ से करना है, कैसे करना है, और पहला जो step होता है वो क्या होना चाहिए, ठीक है. So for that you have to learn programming language, mathematics, data analysis, machine learning, and deep learning in data science. These are the things that you have to learn. Now we are talking about the road to go for. In programming language, you can learn R and Python, but I would suggest go for Python because Python has a lot of built-in libraries, built-in library for each and everything, I guess. And you don't need to build anything like आपको खुद नहीं करना पड़ेगा. Everything is built in. You just have to use those things with understanding of those things. अदर थिंग इज दैट के कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं. तो फॉर से अगर कहीं पे आप फंस जाते हो तो यू विल गेट एन आंसर ऑन स्टैक ओवरफ्लो, लिंक्डइन, ऑन एनी अदर लाइक प्लेटफॉर्म, डेवलपर्स प्लेटफॉर्म, आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा. एंड इट इज़ ईजी टू लर्न बिकॉज क्लोज है इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है. Other thing is that in mathematics you have to learn statistics, probability, linear algebra, and calculus. I would say you should have a good understanding of statistics and probability and a brief understanding of linear algebra and calculus. I have provided courses for these subjects in my roadmap. So I would say कि जब आप Python सीख रहे हो तो along the way आप mathematics के इन subjects को थोड़ा सा सीखना शुरू कर दीजिएगा. एंड इट्स नॉट कि आप लीनियरली चलिएगा कि पहले आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लिए तो अब आपको पूरा ये मैथमेटिक्स कवर करना है एंड देन यू लाइक विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. ऐसे मत कीजिएगा. अलोंग द वे जो है वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स को देखिएगा. एंड आई वुड से कि रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई कीजिएगा कि आगे चल के दीज सब्जेक्ट्स विल बी यूज्ड इन मशीन लर्निंग पार्ट एंड डेटा एनालिसिस पार्ट. तो आप ऐसा कीजिएगा कि जो चीज़ आप सीख रहे हो मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस के अंदर, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको रिवर्स इंजीनियर कीजिएगा कि इसके पीछे वाला मैथमेटिक्स कौन सा है, एंड वही मैथमेटिक्स सीखिएगा. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. And then comes the data analysis part, जिसके अंदर you have to learn SQL because data analysis के अंदर you analyze data and you have to interact with the data. So you should have a good understanding of SQL so that you can interact with the databases and get the data from the databases so that you can do data analysis. And in Python you have NumPy, Pandas, Matplotlib, and Seaborn. These libraries are heavily used for data analysis, जहाँ पे आप data को manipulate करते हो, data से play करते हो, and Matplot and Seaborn को use करते हो, data visualizations भी करते हो. And then you have to learn machine learning. In machine learning you have to learn machine learning algorithms. As I said that earlier के machine learning के अंदर supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning होता है. तो ये 3 type of learnings के अंदर different algorithms होते हैं जो basically आपको सीखने होंगे. तो वो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. एंड साइकिट लर्न जो है वो पाइथन का एक मेन लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए जो यूज़ होता है. वो आपको सीखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स हैं एंड कैसे कैसे वो यूज़ होते हैं. फॉर दैट यू विल गेट अ कोर्स इन. एंड देन कम्स द डीप लर्निंग पार्ट. डीप लर्निंग में भी आपको डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स पढ़ने पड़ते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ऑल दीज आर मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स. वो आपको सीखने पड़ेंगे. एंड फॉर दैट टेंसरफ्लो, केरास एंड पाइटॉर्च, दीज आर द लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन दैट आर यूज्ड. तो आपको वो सीखनी पड़ेंगी एंड आपको वो भी उस रोड मैप के अंदर कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप ये सब कुछ सीख सकते हो. Yes, finally we did it. And this was a brief introduction of data science and what is data science and life cycle of the data science, and then why you should go for data science. And then at the end we talked about the roadmap of the data science. If questions, please do ask. I hope that it is clear and I will questions. ओके, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू करियर डेवलपमेंट इन डेटा साइंस. आप ऐसा प्रोफेशन है, आप तो काफी जानते हैं कि हायरिंग फायरिंग कैसे होती है इस फील्ड में. तो मैं पाकिस्तान की टॉप 3 एआई कंपनीज में काम कर रहा हूँ
एक प्रो टिप है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको कॉल्स नहीं आ रही तो यू मेक योर गिटहब और जो भी कचरा किया हुआ जैसा भी किया हुआ डाल दें। उसको आप जितना रिफाइन और साफ करते रहेंगे उतनी आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पीछे बैकएंड पे टेक्निकल बंदे ही बैठे होते हैं और वो उस गिटहब को भी देखते हैं, बैठे प्रॉपर कोडिंग देखते हैं, आपके रिव्यूज देखते हैं, आपका कंट्रीब्यूटर लेवल देखते हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान में ओपन सोर्स कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन की बहुत एक कमी है, जिसकी वजह से जॉब्स मुश्किल से मिलती हैं बच्चों को। और डेटा साइंस में मेरा जो ख्याल है कि बिगनर लेवल के लिए बहुत सारा स्किल्स रिक्वायर्ड है, 4 से 5। तो एज कम्पेयर टू डेट क्लाउड में एंट्री लेवल आसान है आई गेस एज कम्पेयर टू डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस में कुछ स्किल सेट ज़्यादा रिक्वायर्ड है आई गेस। व्हाट डू यू से ऑन दिस? सी मैंने पहली बात आपको की कि डेटा साइंस एक बहुत वाइड फील्ड है जिसके अंदर आपका डेटा एनालिसिस भी आता है ना। सिर्फ डेटा एनालिसिस पार्ट को अगर सीखना शुरू करें तो हम डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। बट फॉर डेटा साइंस, so that you can become a data scientist, you have to go for some more things like जिसके अंदर आपको मशीन लर्निंग एंड एआई पार्ट भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल दिया था कि इट टेक्स टाइम एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट इनको छोड़ देते हैं। एंड अगर आप बात करें कि आप अपना प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लाइक गिटहब इज ऑब्वियसली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव आउट कर सकते हो। बट अदर देन दैट, फॉर डेटा साइंस स्पेसिफिकली, there's a platform named Kaggle. I hope you guys have heard about that or not, I don't know, but Kaggle is a platform जहाँ पे आपको पब्लिक डेटा सेट्स मिल जाते हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हो। देन आप वहाँ Kaggle पे जो है वो उन प्रोजेक्ट्स को, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, डेटा बेसिकली रियल वर्ल्ड का होता है, उन डेटा को यूज करते हुए आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो एंड वो आप वहाँ पे कैगल पे सेव करते हो। एंड देन उसका रैंकिंग होता है, उसके रिव्यूज होते हैं जो बाकी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ही करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है जितना आप कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहे हो। एंड वहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है ना, वो बेसिकली अगर आप डेटा साइंस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैगल का प्रोफाइल आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो पावर बी आई एंड टैबलो फॉर से, अगर आप स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस पार्ट की तरफ जाना चाहते हो, यू वांट टू बी अ डेटा एनालिस्ट, तो फिर यू हैव टू वर्क ऑन पावर बी आई एंड टैबलो, डिफरेंट विजुअलाइजेशन टूल्स जहाँ पे आप डेटा को विजुअलाइज करते हो। एंड वहाँ पे ही उनके प्लेटफॉर्म्स पे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करके सेव आउट कर सकते हो जो आप आगे चल के शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि डेटा साइंस की जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त कंपेयर टू अदर कैरियर पाथ्स लाइक जैसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, उनका बहुत ज़्यादा काम है कंपेयर टू दोज फील्ड्स। डेटा साइंस का पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कम काम है, बट जितना काम है कंपटीशन कम है। एंड अदर थिंग इज दैट के एक्सपर्टीज इतनी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग तो आप जाहिर सी बात है स्टैंड आउट करोगे। तो मार्केट के अंदर कंपटीशन कम है लेकिन पोजीशंस भी कम है। बाकी बाहर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा काम है। इफ़ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे एंड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे बाहर से, ठीक है। आई डू फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क एंड फाइवर एंड आई गेट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। मीन्स के ये क्लाउड और डाटा जो है वो छोटी सी दराजें हैं और ये अलमारी है डाटा साइंस पूरी इन शॉर्ट। Cloud is something like it is not connected to data science specifically if we talk about these things, because see data science is basically getting the data and playing with the data, ठीक है। and cloud is basically के कुछ सेट ऑफ कंपनी, टूल्स, सेट ऑफ टूल्स हैं जस्ट। हाँ, तब बेसिकली क्लाउड इज की कुछ कंपनीज है जिन्होंने हार्डवेयर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ है एंड अभी हमको वो बस रेंट पे वो चीज दे रहे हैं। पहले मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ता था,
अभी मैं मोबाइल पे या किसी छोटे से लैपटॉप जिसका इतना हाई एंड लैपटॉप नहीं है बट स्पेसिफिकेशंस बहुत लो है, नेट को यूज करते हुए मैं कहीं पे पैसिफिक पता नहीं अमेरिका कहीं पे भी किसी रीजन के अंदर वो एक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो मैं लो एंड पीसी के थ्रू उस हाई एंड पीसी को यूज करते हुए अपना काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने रेंट पे उनसे वो हार्डवेयर लिया हुआ है। क्लाउड इज दैट। Yes. So basically, saw in past there was a PhD scholar in USA. तो वो उसने क्या किया था कि उसने वायरस टोटल के इंजन को पकड़ के ना उसने मॉडल उठाया था और कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग की थी और उसको गूगल ने $6000 का क्रेडिट दिया था खेलने के लिए। सो इन डेटा साइंस आई गेस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड हेल्प कर देता है आप लोग। ये आपने बहुत ज़्यादा मास डाटा को प्रोसेस करना होता है ना, कंप्यूटर पावर आई थिंक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें भी क्लाउड के इस्तेमालात आते हैं आप लोगों के। Exactly. See, when I do data science projects, I have worked on NLP as well, natural language processing. तो उसके अंदर when I like train my models, मेरा जो PC है वो 11th generation का है, Core i5। तो लेकिन वो उसको 9 घंटे लग जाते हैं एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी। मैं वही सेम प्रोजेक्ट किसी हाई एंड क्लाउड के मशीन पे करूंगा तो इट विल नॉट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम टू बेस्ट। हाँ, जो क्लाउड के मशीन से कैन हेल्प अस इन डूइंग डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। Okay, thank you so much for taking your time out and talking about data science. Now let's move on to our next guest. So our next guest is Ahmad Manzoor. Ahmad Manzoor is a highly accomplished technological professional and entrepreneur with over 21 years of experience in ICT solutions, architecture, and pre-sales field. He is the founder and CEO of several successful organizations, including Pakistan Blockchain Institute, ANZ Technologies, Pakistan Smart Contract Academy, and Pakistan Blockchain Research Center. He's the CTO for Blockchain Center of Pakistan and an ex-member of the KPK Advisory Board for Digital Currency, Token Economy, and Crypto Economics Ecosystem. Thank you so much, sir, for joining us. Jazakallah, ma'am. Thanks a lot for having me here. So, can I start? Yes. जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, मैं नॉर्मली उर्दू में बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ ताकि सबको चीज़ें समझ में आ जाएं। और पहली चीज़ ये है कि मैंने बड़ी कोशिश की, सोचा कि मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ इस चीज़ के मुतालिक। फिर मैंने कहा नहीं, एक्चुअली गाइडेंस अगर इसके वो है कि हमने वेब 3.0 ब्लॉकचेन और तमाम चीज़ों को अगर जोड़ना है तो लोग मुझे देख के ज़्यादा सुन सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ऑन माई कैमरा, ताकि लोग मुझे देखते हुए मुझे देख के एक्चुअली महसूस कर सकें व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। सो आने वाली फील्ड में, अच्छा पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैम ने ऑलरेडी करवा दिया है कि जी आई हैव ऑलमोस्ट 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईसीटी इंडस्ट्री एंड मैं जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी सुनने को मिले वहाँ पे मैं नज़र आ जाता हूँ। एक्चुअली ब्लॉकचेन के हवाले से थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हूँ क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसीज को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो पीपल न्यू मी अबाउट दैट। और उसके अलावा जितनी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जहाँ जहाँ पे PSEB PIIC जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते हैं सब। तो आगे की बात करते हैं। मैं एक्चुअली टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं घुसूंगा, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि आप लोगों को अगले 10 से 15 मिनट और फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, दैट्स इट, कि आप लोगों को ये पता लग सके कि आने वाला दौर कैसा है। बिकॉज यू गाइज आर द न्यू लीडर्स, आप लोग आने वाले दौर के लीडर्स हैं और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जी अगर जो डेटा साइंसेस की बात हो रही थी, सर ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें की, उससे पहले भी मैम जो बातें कर रही थी, तो ये सब ने बड़ी प्यारी प्यारी सब ने बातें की हैं माशाल्लाह। तो इन सब चीज़ों ने, यानी आप लोगों की कोई भी फील्ड है लाइक डेटा साइंसेज है, तो आगे आने वाले दौर में उसका रोल क्या है। ठीक है, आपने डेटा साइंसेज ज्वाइन कर ली, नॉर्मली अगर सर आई थिंक पता नहीं कनेक्टेड है या नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात के जितने मेरे डेटा साइंसेस के दोस्त हैं ना, डेटा साइंटिस्ट जो हैं, उनको मैं एक बड़ी मजे की बात कहता होता हूँ कि जी आपके आने वाले दौर में, कि अभी आप लोगों का ग्रेस पीरियड चल रहा है,
जब डेटा पेटाबाइट्स की सूरत में लाइव आ रहा होगा ना, पता तो तब लगेगा कि डेटा साइंसेस असल में क्या है। अभी तो ग्रेस पीरियड चल रहा है, एंजॉय चल रहा है, अभी तो डेटा ही नहीं है। अभी तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम की, उसके पास जो डेटा है वो थोड़ा सा डेटा, कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है भारत। तो आने वाले दौर में जो चीजें कनेक्ट कैसे होंगी, यानी अगले 2 साल किस चीज की, अगर आप अगले 2 साल में ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आपको क्या चीज सीख लेनी चाहिए, अगर आप कल ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपको क्या चीज सीख लेनी चाहिए, ताकि जैसे ही आप मार्केट में जाएं तो आपको पता लगे कि क्या चल रहा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट डिजाइनर हैं, यू आर अ प्रोडक्ट डेवलपर, तो आपको पता लगे कि आने वाले दौर में जो प्रोडक्ट्स बननी है वो किस किस्म की हैं, क्या रोल है, या बेसिकली क्या यानी आप इसको कह लीजिए कि आईओटी का क्या रोल है आगे आने वाले दौर में, ब्लॉकचेन क्या करेगा, क्या वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की और है या क्या चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें मैं थोड़ी सी इस चीज पर बात करूंगा, देन क्वेश्चंस लूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से, और कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा गाइड कर सकूं आप लोगों को करूं। तो पहली चीज ये है कि हम कोशिश करते हैं और उसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का पड़ेगा, आपकी डेटा कहां से जनरेट होगा। तो एक टेक्नोलॉजी है आईओटी, यू आई होप यू ऑल नो अबाउट दैट। अगर मैं सिर्फ जो भी अगर आपसे क्वेश्चन करूं चैट पे लिख दीजिएगा कि जस्ट यू न्यू इट, तो बाकी फिर इंशाल्लाह उसको मैं चलता जाऊंगा जो बात करता हूं। तो यू न्यू अबाउट आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए ये उसका नाम चेंज कर देता हूं। देखें आप सब इस टाइम आप सबके पास आईओटी की डिवाइसेस हैं, राइट। अगर कभी लगता है कि नहीं है तो आप सब स्मार्ट वॉच, आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। अच्छा चलें, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बड़ा मजे का, डू यू नो व्हाट इज द स्मार्ट। आपने स्मार्टफोन सुना, स्मार्ट होम सुना, स्मार्ट वॉच सुना, स्मार्ट डिवाइसेस आप सुनते हैं, स्मार्ट टीवी, व्हाट इज स्मार्ट। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज स्मार्ट। आज आप लोगों को इससे भी जरा बाहर निकालता हूं कि व्हाट इज दैट स्मार्ट। हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता, क्योंकि मुझे कई दफा सेशंस के ऊपर या स्पीकिंग उधर ट्रेनिंग सेशंस के, इवन कॉर्पोरेट के अंदर लोगों को जो है ना लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे अभी कोई भाई थे जो कह रहे थे मैं एआई की कंपनी में जॉब करता हूँ, तो सर कैन यू गाइड के जी स्मार्ट क्या चीज है, इज कि अगर आपको इजी वे टू एनालाइज और अंडरस्टैंड नो something that is capable of learning and executing, no actually, चलें मैं बताता हूं। देखें in simple words, no exactly not the simple word, smart जो है ना that is an abbreviation। किस चीज का एब्रीविएशन है, कभी सोचा। यानी देखें आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्टफोन यू रखते हैं, तो दैट इज बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, चारों को जोड़ के अगर आप कहें ना यस इंटेलिजेंट, यस सेंसर्स, यस, देन ओके दैट्स फाइन, लेकिन दैट इज द एब्रीविएशन SMART, सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस। आई होप आप में से कुछ को शायद ये बात पता हो, कुछ को नहीं पता होगी। दैट इज बेसिकली द एब्रीविएशन द स्मार्ट। हाँ, हमारे यहाँ लोग स्मार्ट को कुछ और समझ लेते हैं कि पता नहीं कोई बंदा जा रहा है शायद स्मार्ट, या हमारी डिवाइसेस बड़ी आजकल स्मार्ट सी हैं तो शायद घड़ियां बड़ी स्मार्ट नहीं। तो ये एक एब्रीविएशन है जो कि आप हर चीज के साथ साथ लगा, और जिसकी बेस पे आप डिसीजंस लेंगे। तो अगर मैं की जो डिवाइस है वो आपसे कुछ डेटा कलेक्ट कर रही है, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए कह सकता हूँ ये डेटा गैदरिंग टूल है। अब वो डेटा गैदरिंग टूल से जो डेटा गैदर हो रहा है, जैसे अभी बात हो रही थी कि बहुत रॉ डेटा ने आना है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड, जिसको आप स्ट्रक्चर्ड में मूव कर रहे होंगे, इसी जगह पे सेव होना है जहां पे वो मैनिपुलेट ना हो सके, दैट इज ब्लॉक। एंड द थर्ड थिंग इज जिसने उस डेटा को यूज करना है, दैट इज एआई। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि एक पहला डेटा गैदरिंग टूल, दूसरा मैं कह देता हूं टूल, और तीसरा मैं कह देता हूं दैट इज अ प्रोडक्टिविटी टूल, बिकॉज एआई की बेस पे उसने उस डेटा को यूज करते हुए प्रोडक्टिव बनाना तमाम चीजों को। तो ये एक ट्रायंगल है, यानी तीनों ने इकट्ठे काम करना है। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं और उसके अंदर एक भी चीज को आप मिस कर जाते हैं आने वाले दौर में, तो वो कुछ अरसे के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो फ्लॉप होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चीज का पड़ेगा, देखें सबसे ज्यादा डेटा गैदर करेगा ऑब्वियसली आईओटी, लेकिन इंपैक्ट डालेगा हर इंसान की लाइफ में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना।
यानी जब अब वो आपने शायद एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी उन्होंने कभी ना कभी, या आपने किसी मूवी के अंदर कभी सुना हो कि एआई जब आएगा ना तो आपकी लाइफ बढ़, यहाँ पे एक आंसर देने में आता है होगा ये कि आप बीमारियां जल्दी प्रोटेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, चीजें ऐसी हो जाएंगी। तो होगा ये कि आपके जो टास्क हैं, अभी चैट जीपीटी ने क्या किया है, उसने आपके यानी आपका 24 घंटे का जो टास्क था वो 2 घंटे में होना शुरू हो गया। तो 22 आवर्स आपके पास बचना शुरू हो गए। तो वो जो सर पहले बात कर रहे थे ना कि यू कैन मेक मोर मनी, कुछ भी आप और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो अब आप इसको एक दफा सोच के देखिए कि आईओटी, ब्लॉकचेन और एआई का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, लाइक के जी हम वेब 3 की बात करें तो एक चीज और याद रखिएगा, ब्लॉकचेन इज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी। वेब 2.0 की बैकएंड टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, तो वेब 2.0 है, और इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं यहां वाली जो चीजें हैं। तो दैट मींस कि इसको आप कनेक्ट करें तो आपका ये डेटा मैनिपुलेट हो गया, तो वेब 2.0 के ऊपर आप उसको किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। वेब 3 सेम चीजें रहेंगी, जैसे वो हमारे यहाँ लोगों को हवा बनाने की चीजें बहुत ज्यादा कोशिश होती है, मैं नहीं जानता क्यों, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुश्किल समझ में नहीं आती। ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली वेब 3.0 पे सेम टूल्स यूज हो रहे हैं, सेम चीजें यूज हो रही हैं, इंटीग्रेशन और बैकएंड चेंज हो जाएगा। सिर्फ बैकएंड ब्लॉकचेन बन गया, इंटीग्रेशन हुई फ्रंट एंड के साथ, एंड दैट इज वेब 3.0 का पूरा प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है। तो दैट इज वेब 3.0। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी पता नहीं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आपने सोच के आनी है चीज के क्या है। द सेम थिंग्स विद द मेटावर्स। मेटावर्स इज एन एक्सपीरियंस, वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। यानी आप AR VR की बात करें तो अभी क्या है, आप AR VR सब खेलते हैं, ओकलस का सबको पता है, वो HTC की जो प्रोडक्ट है उसका भी सबको पता है। अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके लिए चीज बहुत आम हो जाए AR की सूरत में, ऑगमेंटेड रियलिटी की सूरत में, कि आप जितना भी आप चीजें हैं ना, जो बड़ी हुई चीजें उन्हीं को यूज कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों के सामने हूं, मैं आप लोगों की कभी यूनिवर्सिटी आऊं तो आप लोग मेरी ये ग्लासेस लें, खोज बटन, तो आप इसको ना अपडेट करके मुझे वापस कर दें, और मैं सिर्फ आप लोगों को देखूं तो आप लोगों के सरों के ऊपर मुझे लिखा हुआ नजर आ जाए कि ये अब्दुल फहद साहब हैं, ये मैम आयशा हैं, मैम सारा हैं, एंड एवरीबडी, वो मुझे सबके ऊपर नजर आ रहा हो। तो रोल नंबर क्या, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमारे यहाँ इन चीजों को थोड़ा हवा बना के किया जाता है। वो जो एक्चुअली एक और इसका मजेदार कॉन्सेप्ट मैं नॉर्मली लोगों को बताता हूँ कि जी विंडो शॉपिंग होती है ना, तो विंडो शॉपिंग को एक रियलिटी बना दिया जाएगा कि आप जा रहे हैं, आपको घड़ी पसंद आई, आपने उस पर क्लिक किया, घड़ी आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू हो गई आपकी रिस्ट पे, कि जी ये जो घड़ी है मेरी रिस्ट पे कैसी लगेगी। सो रियलिटी, यानी ये आने वाले दिनों में रियलिटी बनने वाली है ये चीजें। देन जो VR है, हम सब वर्चुअल जिंदगी गुजारते हैं आजकल, में से बहुत सारे लोग मेरे समेत ऑब्वियसली के कहते हैं जी ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम बैठे हो ना, रात को सोने से पहले उठ के देखते हैं और घंटा घंटा गुजर जाता है, पता भी नहीं लगता हमें। ऐसी कौन सी चीज है, आप सब यूज करते हैं उस चीज को, मोबाइल पे फेसबुक, या आप कहीं इंस्टाग्राम, जो भी आप ऐप यूज करते हैं, तो पता नहीं लगता टाइम का, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ही उठ के देखा वो शहरी का टाइम, चलो अब क्या सोना है हमने। सो दैट्स हैपनिंग, ये सब चल रहा है आजकल। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे सोच के देखें, या चलें इसके एक और मिसाल देता हूं कि आप लोगों के साथ एक और भी एक्सपीरियंस होता होगा। आप सब खुद माशाल्लाह बच्चे हैं, जिनके छोटे बहन भाई होंगे, वो क्या जी कभी उनको देखा हो ना जिनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, कई जब वो ऐसे ऐसे करके गेम खेल रहे होते हैं, हम भी खेलते थे, आप भी खेलते हैं, मेरे बच्चे भी खेलते हैं, सब हम उसी तरीके से कर रहे होते हैं। सो दैट्स द वर्चुअल थिंग। उसके अलावा एक और जो चीज आजकल आप ने बहुत ज्यादा फेस की होगी, पिछले दिनों को क्रिकेट के मैचेस भी हो रहे थे, फुटबॉल के मैचेस हो रहे थे, तो अचानक नहीं आप कह रहे होते और रन ले रन ले रन ले कह रहे होते हैं यार पास दे, हालांकि आपको पता है कि आपकी आवाज उसको नहीं जा रही, बट मेंटली आप उसके अंदर है। सो दैट्स द वर्चुअल रियलिटी जिसके अंदर आप जी रहे होते हैं। अब इसको मैं कहूं कि जी आप एक आर्किटेक्चर, सपोज करें एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और आपने घर बनवाना है, वो आपको मल्टी डायमेंशनल ट्रेडमिल पे खड़ा करता है और आपको कहता है ओके, ओकलस लगा के आपका सूट पहना के आपको कहता है चलें अब आप चलते हैं, आपको इस साइड पे भी पूरा फर्निश्ड घर नजर आ रहा है, इस साइड भी फर्निश्ड घर नजर आ रहा है,
और आप चलते जा रहे हैं और देख रहे हैं अचानक आप उसको ये साइड पे चाहिए, तो वो अपने सिस्टम बनाया वहां से वो चेंज कर दे। तो एक्सपीरियंस है। मेटावर्स इज नॉट लाइक कि जी कोई ऐसी हवा चीज है कि हाँ ई कॉमर्स के अंदर वो आपने सुना ऑर्डर दिस एंड गेट सीन, आपने सुना हो, चीज भी होनी खत्म हो जाएगी अगर मैं फुल डायमेंशनल अपना एक एवाटार वहां पे बिल्डअप कर दूं विद माय फुल डायमेंशंस। गुची के स्टोर पे जाता हूं और वहां पे मुझे कोई जैकेट पसंद आती है तो मैं उसको कर सकता हूं। आजकल एक मिरर इस तरह का बहुत ज्यादा चल रहा है, दुबई में इंप्लीमेंटेड है, और पे देख रहे होते हैं कि कौन सा ड्रेस आप पहन रहे हैं, आप सामने खड़े हो ड्रेस चेंज होता है आपका, यानी शीशे के अंदर, तो आप देखते हैं वो सो दैट इज आल्सो वर्चुअल रियलिटी। तो यानी ये कहने का मकसद ये है कि अब आप अगर सोचें कि जी अगले 2 साल में जो लोग, जैसे अभी जो लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको मैं यही कहता हूं कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लें ताकि कल को आप AWS में, क्योंकि आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज्यादा चल रहा सिलसिला, देन 2 साल बाद ग्रेजुएट होना है ना, तो ठीक है, देन उसके बाद ठीक है IoT की डिवाइसेस बनेंगी, लेकिन साथ साथ वो ब्लॉकचेन पे चीजें भी फेंक रहा होगा और उसके अंदर प्रोविजनिंग होगी कि इसको AI के साथ इंप्लीमेंट किया जा सके, तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी। तो अपने आप को इस तरीके से, यानी चीजें आने वाली हैं, आप लोग उसके ऊपर थोड़ा सा करने की कोशिश करें ताकि आपके पास, मैं हमेशा नॉर्मली एक जुमला बोलता होता हूं कि रियल नॉलेज लें। ये जो जल्दी चीजें होती है ना, ये असल में एग्जिस्ट कोई नहीं करती। हमें लग रहा होता है आप अगर ग्रेजुएट कर रहे हैं ना, तो आप यहां से बाहर निकलते हैं तो सामने जाके बड़ी कंपनीज शाहरुख फैला के खड़ी होंगी ना, तो ऐसा कुछ नहीं है बाहर, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को रियल नॉलेज लेके रियल नॉलेज पे बात करनी चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोग ये जो आपका सारा जो फर्म है इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप लोग इस पे करें। सो मेरी बात आई थिंक मैं पहुंचा पाया हूँ और समझा, दुनिया चेंज होने वाली है में, तो आप लोग सर आई हैव अ क्विक क्वेश्चन कि जो ब्लॉकचेन है इस फाइनेंशियल सेक्टर ने शिफ्ट की है, हमारे हमसाया मुल्क ने अपना फाइनेंशियल सेक्टर आई गेस के ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर लिया है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस, लेकिन अभी हमारे मुल्क में ये वो ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, ना ही IoT का डाटा इतना बूम आ रहा है IoT का, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं है, तो उस पर क्या डेवलपमेंट हो रही है ऑन द गवर्नमेंट लेवल या आपके हिसाब से पाकिस्तान में? अच्छा, एक्चुअली ये जो एक हवा है ना कि ट्रांजैक्शन उन्होंने कर लिया, नहीं जी उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं की हैं। उन्होंने 60% टैक्स लगाया अपने पिछले बजट में, 2022 मार्च के बजट जो उनका आया था उसके अंदर, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च कर दिया इन दिस ईयर एज ए, ठीक है, कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उन्होंने भी ब्लॉकचेन पे नहीं डाले, दिस इज जस्ट एक वो हमें हमारे जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और माशाल्लाह हम मान लेते हैं, दैट्स अनदर थिंग। दूसरी बात आर्किटेक्चर बेस, डू यू नो PTCL कौन से नंबर पे आता है, यानी पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है, किसी को अंदाजा है कि किस नंबर पे है दुनिया में, है अंदाजा? माशाल्लाह बहुत हाई नंबर्स होंगे। 4th नंबर पे है सर, 4th नंबर पे, यानी पहले नंबर पे AT&T, देन ब्रिटिश टेलीकॉम, देन इतिसलात और देन PTCL का आर्किटेक्चर है। तो हमारे पास जो PTCL के पास या डिफरेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट लगा हुआ ना, वो अगले, सिर्फ फर्क यह है कि हमें स्मार्टली यूज करनी नहीं आती चीजें, हमें पता नहीं कि हमने उनके साथ करना क्या। जैसे इसकी एक मैं मिसाल देता होता हूँ, हम में से आधे क्या, मेरा मतलब 90% लोगों, अगर मैं यानी कि सामने लोग बैठे हो ना, या आप सबके कैमराज ऑन हो, तो मैं सबसे पूछूं एक क्वेश्चन के जी कितने लोगों को ये लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं? बिलीव मी, हर बंदा हाथ खड़ा करेगा, एटलीस्ट 90% तो करेंगे, या 95% तो जरूर करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती। हर बंदे के पास आईफोन है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि iPhone 13 में और iPhone 14 में फर्क क्या। iPhone 14 हर बंदे ने लिया हुआ खर्चे में, लेकिन उनको पता नहीं है कि दोनों में फर्क क्या, या स्मार्टली यूज कैसे करना है इस पूरे इक्विपमेंट को। तो यहां पे प्रॉब्लम आती है। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटेशन की, नॉट आर्किटेक्चर वाइज, या इंप्लीमेंटेशन जीरो है कि उसकी भी एक रीजन है, बिकॉज पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा है।
और एक बात अभी किसी ने यहाँ पे लिखी कि ब्लॉकचेन पर थोड़ा देखें, जो आपने भी बात की ना कि हम टेक्निकली ब्लॉकचेन के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं है। आपको हमेशा प्रोजेक्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड होते हैं। आपको कभी भी एक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट जो है एक टेक्नोलॉजी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके लिए, जो मर्जी यूज करे उसको। लेकिन हाँ, कुछ वेबसाइट्स बंद की हुई हैं, उनको परमिट किया जाता है कि इनको बंद कर दिया जाए। तो ये एक चीज होती है कि आप एप्लीकेशंस को या उसके यूज केसेस को ब्लॉक कर सकते हैं, रेगुलेशन रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो आप अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं, जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, उनकी अगर बात करें तो उनका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। तो जितने लोग कहते थे ना इससे इकोनॉमी बहुत ऊपर चली जाएगी, वो जिस कंट्री ने किया था ना, इक्वाडोर ने गालबन, कि जी इसको एल्साल्वाडोर समथिंग जो भी नाम था, कि जी वो बिटकॉइन पे ले गया, उसको कंट्री को पूरी वो क्रैश कर गया। वो उसी दिन मेरी, यानी जब ये सब कुछ हुआ था, तो मैं और कुछ हम और जो एक्सपर्ट्स हैं, हम सब ने एक जूम कॉल की। ये इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिस्ट थे, उसके अंदर फाइनेंस के एनालिस्ट थे, सारे चंद 1-2 साल बाद ना ये इनकी सारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। वो क्रैश कर गई है। तो उनका, लेकिन जो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज है ना, उनका यस आपको वाकई फायदा है। क्योंकि इसकी एक मिसाल अगर दूं आपको, कि जो आपके रुपये है ना आपके हाथ में 100 रुपए, आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जी ये जो रुपये है 100 रुपया, ये असल में कितना है आपकी जेब में, जो बाद में आपसे टैक्स की मद में लिया जाता है। डू यू हैव एनी आइडिया कि ये, क्योंकि इसकी एक कॉस्ट है, तो ये आपकी जेब में 94 या 96 रुपीज होते हैं। तो इसकी एक प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसकी पेपर की कॉस्ट है, वो जो तार नहीं देखते हम ऐसे करके, उसकी भी एक कॉस्ट है। तो वो जो 100 रुपया होता है को नहीं मिलता। तो इसलिए जो है, अगर आप उसको सिंपल डिजिटल उसमें ले आए, तो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग भी रुक जाएगी, बेतहाशा चीजें और रुक जाएंगी, तमाम चीजें रिकॉर्ड पे आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस पर आपको काम अभी से शुरू करना पड़ेगा पॉलिसी में। आई होप मैं आपकी बात। एनीथिंग एल्स जी? जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखें, हर वो आइडिया इनोवेटिव होता है जो नया आता है। इसमें कोई ऐसी, यानी वेब 3.0 पे आप क्या इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं? बेसिकली आपने ब्लॉकचेन को डेवलप करना है, आपने आईओटी, आप अभी कहते हैं कि जी मैं बिजली के पॉइंट। अब वेब 3.0 का क्या मतलब है कि जो फ्रंट एंड वेब 3.0 होगा, जो बैक एंड होगा वो ब्लॉकचेन होगा, दैट्स इट। लेकिन बिजली के बिल को लाने के लिए या उसके यूनिट्स को लाने के लिए आपको पड़ेगा आईओटी का डेटा ब्लॉकचेन पे रखना पड़ेगा, और उसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेब 3.0 के साथ, वेब के साथ एक्चुअली। तो फिर वो वेब 3.0 का इनोवेटिव आइडिया बन जाएगा। अब आपने सोचना कि इसको कैसे किया जा सकता है। एडवाइस फॉर फर्स्ट ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यार स्टार्ट वर्किंग स्मार्टली। मैं पिछले 5 बता रहा हूं, प्रोग्रामिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। चैट जीपीटी ने आगे ये बात प्रूव कर दी है। देखें, आगे आने वाले दौर में जो जॉब्स आने वाली हैं ना, वो, अब इनमें से आप क्या बनना चाहते हो आप खुद चूज कर रहे हैं। पहले आते हैं आर्किटेक्ट्स, ये जो रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स होते हैं। देन इकोसिस्टम एक्सपर्ट्स, दिस इज न्यू थिंग। देन डेवलपर्स। इकोसिस्टम एक्सपर्ट्स आर डॉक्टर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी, यानी कि सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स, जो, और उन दोनों ने मिलकर 80% काम करना है पूरी दुनिया का, डिजाइन। और फिर डेवलपर्स, ज्यादातर चीजें ऑटो डेवलप होंगी। जैसे आजकल भी लोग वेब डिजाइनिंग सीखते हैं, 100 बिस्मिल्लाह जरूर सीखें, लेकिन मैं उनको मना इसलिए करता हूं कि अगर दैट इज अ बेसिक वेब डिजाइनिंग ना, फिर कोई फायदा नहीं है सीखने का। क्योंकि मैं आज भी wix.com पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी वेबसाइट डेवलप हो जाती है। कैनवा में आपको जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कोई बहुत क्रिटिकल चीज आपको चाहिए, देन ओके, देन दैट्स फाइन। इट डिपेंड्स कि जी जॉब कभी किसी की खत्म नहीं होगी, जॉब स्मार्ट हो जाएगी थोड़ी सी। मैं हमेशा ये कहता हूं, जैसे एआई कभी जॉब्स खत्म नहीं करेगा किसी की। एआई यूज करने वालों की जॉब स्मार्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा। यानी
आप बात कर लें, जैसे वो कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक चीज चल रही थी कि जी आजकल लोग चैट जीपीटी को, इटली ने गालिबन बैन कर दिया चैट जीपीटी को, तो पाकिस्तान वाले भी एचईसी वाले रौला डाला चैट जीपीटी बैन होना चाहिए एंड समथिंग। चैट जीपीटी यानी तब 1980s में जब कैलकुलेटर आया था तो मैथमेटिशियंस ने कहा था ये क्या हो गया, उनके प्रोफेसर ने कहा था कि जी ये क्यों आ रहा है, ये तो हमारी जॉब खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यू नीड टू वर्क स्मार्टली। लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स सेम चीज, वर्क स्मार्टली। अपनी चीजों को सीखना शुरू करें अभी से, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके, लेकिन और कौन कौन सी एआई बेस्ड डिवाइसेस आ चुकी हुई हैं आजकल, एक नई, बल्कि नई क्या, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जा रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें वो मिड जर्नी के ऊपर प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, आपने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, और एआई टूल्स उन पे प्रॉम्प्ट कैसे लिखने हैं। कॉपी पेस्ट करने की जगह पे आप दुनिया को एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करें, दुनिया में किस तरह काम हो रहा है, आपको मजा आएगा। So sir, from student point of view, the jobs are coming in future, वो specialist की ज़्यादा हैं या generalist की ज़्यादा आ रही हैं market में? ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट अब रहे नहीं एक्चुअली। यानी आप इसमें ऐसे कह लीजिए, अब मैं आपको इसकी मिसाल कैसे दूंगा, एक सेकंड, कि यानी आजकल जो जॉब होती है ना, बंदे को पता क्या चाहिए, जैसे आजकल एक पहले होता था कि आपको लिंक्डइन का एक बंदा चाहिए जो लिंक्डइन पे काम कर सकता है, उस पर बिडिंग वगैरह, और उसके फेसबुक का अलग बंदा चाहिए। अब आप इसको खुद ही ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आप उसको जर्नलिस्ट कहते हैं या स्पेशलाइज कहते हैं। आजकल उन्होंने एक ही बंदे को कह दिया, यू आर द कम्युनिटी मैनेजर, यू गोइंग टू कनेक्ट अस विद द कम्युनिटी, दैट्स इट। वो लिंक्डइन पे भी पोस्टिंग कर रहा है, वो जी वहां, सिर्फ फर्क क्या है, कुछ अब उन्होंने उनको चेंज करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर आप कह लीजिए एक बंदा उन्होंने रखते जो सोशल मीडिया को वो करता है, यानी हैंडल करता है। एक बंदा रख, पहले ये लिंक्डइन वाला बिडिंग प्लस सोशल मीडिया जो सिर्फ लिंक्डइन पे काम करता, वो बंदा ही लगा हुआ करता था डिफरेंट कंपनी। तो अब आप इसको ट्रांसलेट कर लें, आप इसको स्पेशलाइज कहेंगे, जर्नलिस्ट कहेंगे, मेरे हिसाब से तो ये काम करने वाला बंदा जो कि सिर्फ स्मार्टली काम करना जानता, सॉरी मैं फिर वही वर्ड बोल रहा हूँ स्मार्टली, तो काम करना जानता है कि करना कैसे है। एक सेकंड, किसी ने कोई, हाँ साइबर सिक्योरिटी, अच्छा साइबर सिक्योरिटी वाले जो है ना यार, एक चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी में बंदा स्पेशलिस्ट हो जाता ना या काम सीख लेता है, उसका हाल वही हो जाता है कि कोई बंदा पीटीसीएल में जॉब करता हो ना, तो उसको सबसे ज्यादा कॉल्स पता है किस चीज की आती हैं, फोन खराब हो गया हमारा, बेशक उसका कोई लेना देना ना हो इस काम से, ठीक है ना। या कंप्यूटर साइंस की फील्ड के बंदे को, ये शायद आप वैसे जो कंप्यूटर साइंस के विंडोज इंस्टॉल कर लेते हो या कंप्यूटर रिपेयर कर लेते हो, तो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट हैकिंग, इट्स अबाउट पॉलिसी मेकिंग। आप लोगों को यह सीखना है कि आने वाले दौर में, जैसे अभी हम मूव हो रहे हैं, अभी आजकल हम जिस दौर में जी रहे हैं, दैट इज वो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर का दौर है। जितनी पॉलिसीज बनी है वो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर की हैं। हम मूव कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज, ओपन सोर्स एंड डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, जहां पे ये हवावे और सिस्को और ये तमाम मोनोपोलीज खत्म होने लगी हैं। तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज पॉलिसी कैसे बनाते हैं। तो बी अ पॉलिसी मेकर, यानी वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो एक जब पॉलिसीज बन जाती हैं उनको बाद में टेस्ट करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टर्स आते हैं, देन वो एक प्रोसेस चलता है। तो आप, आई होप कि आपको मैं जवाब दे पाया हूँ आपकी बात का। एनीथिंग एल्स जी ऑन वर्किंग स्मार्ट? यार एक्चुअली वर्किंग स्मार्ट जो मैं बार बार बात करता हूं ना, देखें देयर आर टू टाइप ऑफ, एक वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट। वर्किंग हार्ड, इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि आप गूगल पे जाते हैं, एक एक आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसमें से कॉपी पेस्ट चीजें कर रहे होते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स पे जाके, दैट इज वर्किंग हार्ड। इट विल टेक 7 hours टू कंप्लीट योर जॉब। वर्किंग स्मार्ट, आप जस्ट चैट जीपीटी पे जाते हैं, राइट इट डाउन कि जी एक आर्टिकल मुझे चाहिए, वो आर्टिकल आपको लिख देता है, रेफरेंसेस भी मंगवा लेते हैं आप, दैट इज वर्किंग स्मार्ट। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम है, एक गूगल वाला जो है वो आपको, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं, अगर ये आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका टाइम बच गया। जो 7 घंटे थे ना, 15 मिनट में जो उसने आर्टिकल लिख दिया आपको, यानी आपने उसको कर लिया 10 से 15 मिनट के अंदर,
अब बाकी टाइम जो है ना, 1-8 घंटा आप उसको लगाएं इसको पढ़ने में, उसको चीजें चेंज करने में उसके अंदर, तो वो 7 घंटे की चीज 1 घंटे में आपने कर ली, तो इट्स वर्किंग स्मार्ट है। एनीथिंग एल्स जी? और दैट्स इट? So you will take up, who will take up? So very much. और कोई चीज तो मैं आपको, जी मैम। Okay, thank you so much sir for taking your time out और इतना अच्छे से आपने सारा explain किया. Thank you. Thank you very much. Take care. Okay, so we have our next guest with us. Let's share the screen. So can you मुझे put actually students? इसको आप में से किसी को होस्ट कैसे बनाया जाएगा इसमें, बिकॉज मैं अगर लीव करूंगा तो सब कुछ बंद ना हो जाए. हाउ आई कैन डू दैट? एक सेकेंड. नहीं सर, बंद नहीं होगा. पता नहीं मुझे तो कुछ ऐसा ही वो आ रहा है. एक सेकेंड. अच्छा, बंद नहीं होगा, कर दूं आप? जी सर, आप कर दें, बंद नहीं होगा, होस्ट अवेलेबल है. जज़ाकल्लाह. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. Thank you sir. Nice. Okay, so our next guest is Aadil. He is GDSC lead at IUB as well as the chairperson of ACM IUB chapter. He is an enthusiastic advocate of artificial intelligence and machine learning. Aadil is also a skilled writer working as a freelance writer in his free time. He'll talk about how to stop procrastinating and focus. Over to you, Aadil. Hello everyone. Thank you, Aisha, for a brief introduction. Am I audible? Yes. Okay, let me share my screen, please. Okay, so hello everyone and welcome to Mapping Your Tech Career, an online virtual event organized by GDSE IUB. My name is Muhammad Aadil Hamza and I am currently pursuing Bachelor's of AI at IUB and I am currently serving as GDSE lead and chairperson ACM chapter. Covered in this session is what is procrastination and how to overcome procrastination. सो व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम एक चीज़ पे स्टिक नहीं कर पा रहे, हर चीज़ में हम लैग कर रहे हैं, कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, 1-2 दिन उस पे स्टिक रहते हैं, फिर उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं. और आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स का ये इशू होगा. और अगर आप लोग भी ये इस चीज़ से गुजरते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि वाकई ये इशू कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं. और हम खुद भी, मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ये चीज़ बहुत फेस की है. कोई भी स्किल ट्रैक को अगर स्टार्ट करना है, ज़्यादा टाइम लगता है उसको सीखने में और आप मतलब 1-2 दिन आप बहुत इंटरेस्ट के साथ बैठते हो, लेकिन उसके बाद आप उसको बिल्कुल वो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते. तो प्रोक्रेस्टिनेशन की डेफिनेशन यही है कि आप बिला वजह किसी चीज़ को डिले करते हो. और आप अगर करने भी बैठ रहे हो कि कोई चीज़ अगर आप सीखने लगे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई अपना कोर्स वर्क कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी का, या आप कोई वैसे कोई कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप उसको बिला वजह डिले कर देंगे कि यार अभी चलो यार मैं पहले ना मैथ सीख लेता हूँ, चलो यार मैं इसके प्री रिक्विजिट्स देखता हूँ उनमें क्या क्या है, मैं वो स्टार्ट करूँगा. अच्छा, आपने 1-2 दिन स्टार्ट किया,
उसके बाद क्या हुआ कि आपने कहा नहीं यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे, तो मैं जो है ना क्लाउड सीख लेता हूँ क्योंकि उसमें जॉब्स भी ज़्यादा हैं, उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ी-सी अपने ऊपर फ़ोकस करना पड़ता है। काफ़ी सारी इसके लिए हमें थोड़ी स्किल्स अपनी जो है ना उनको पॉलिश करना पड़ता है। एक तो प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हर गोल जो होता है आप एवरी सक्सेसफुल गोल स्टार्ट्स विद अ गुड प्लान। आपके पास जब तक कोई प्लान नहीं है अच्छा, आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आपके पास कोई एग्ज़ीक्यूशन पावर नहीं है ना, तो आप कुछ भी सोचते रहें सकेंगे। क्योंकि आजकल मोस्टली एक ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि सीजीपीए मैटर करती है कि नहीं, तो आजकल वो कामयाब है जिसके पास नोवेल्टी ऑफ आइडियाज़ हैं, जिसके पास नई सोच है, एग्जीक्यूशन पावर है, कॉम्पिटेंसी है, एटीट्यूड है लर्न करने का, अपने आप को रिवायर करने का, रीटूल करने का। तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसे कि सर ने भी पहले बताया कि स्मार्ट वर्क करना है। अब आजकल जो दौर है वो स्मार्ट वर्क का है, ना कि हार्ड वर्क का है। और जो लोग जिन लोगों का ये कंसर्न है कि चैट जीपीटी उनकी जॉब को रिप्लेस कर देगा, उन्हें ये सीखना चाहिए या नहीं, तो चैट जीपीटी नहीं रिप्लेस करेगा। जो इंसान चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा होगा, जो के पास है डेटा साइंस की, एआई की, कंटेंट राइटिंग की, अगर वो एआई को यूज़ कर रहा है अपने काम को ईज़ी करने के लिए और उसको शॉर्ट टाइम स्पैन में ख़त्म करने के लिए, वो बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है बाकी लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट है एस्टैब्लिश योर प्रायोरिटीज़ एंड फोकस ऑन देम। अपनी प्रायोरिटीज़ पे जो है ना फोकस करें। इसमें एक एबीसीडीई मेथड है, प्रोक्रेस्टिनेशन पे ईट दैट फ्रॉग, उसका भी मैं आपको उसका क्या मतलब होता है। तो एबीसीडी मेथड ये है कि आपने जो अपनी चीज़ें हैं आपने उनको एक फिगर दे देना और बाकी जो जो कम सबसे प्रायोरिटाइज है उनको आपने ई दे देना है। तो सबसे पहले ए वालों को फिनिश करना है अपने स्टार्ट ऑफ द डे पे, और इससे ये होगा कि आपके जो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होंगे ना वो सबसे पहले हो जाएंगे। और अपनी विल पावर पे फोकस करें और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें, खास तौर पे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स वगैरह डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में। ओके, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको कुक करना है एंड यू डोंट हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स। जब तक आपको पता नहीं होगा, आपके पास एनवायरनमेंट नहीं होगा, मोटिवेशन से ज़्यादा हमेशा एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। जो लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है मुझे, आई एम डीमोटिवेटेड इस चीज़ को लेके, तो वो भी बिल्कुल गलत कहते हैं। जब तक आपका एनवायरनमेंट अच्छा है ना, तो आप रोक सकता है आगे बढ़ने से। थिंक अबाउट ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू कीप लर्निंग। एक एवरेज ड्राइवर जो है वो 5 हर साल, तो अगर वो उस टाइम को यूज करे कोई स्किल सीखने में या कोई लैंग्वेज फॉर एग्जांपल वो सीख रहा है ऑडियो के जरिए, तो वो उस लैंग्वेज को मास्टर कर सकता है। तो इस तरह अपना टाइम को स्मार्टली कंज्यूम करना सीखें। और नेक्स्ट है परफॉर्म बेस्ट बाय स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड। अगेन पोस्टी प्रायोरिटीज वर्सेस प्रायोरिटीज के आप सबसे ज्यादा आपका जरूरी क्या है आपके एक दिन आपने, और अच्छा सबसे पहले तो आप टू डू लिस्ट बनाया करें लाजमी, और उसमें जो है ना आपने जो डेली के आपके टास्क हैं वो उसमें लिखा करें। एक सर्वे के मुताबिक जो लोग ये यूज़ करते हैं वो 5 to 10% ज़्यादा एफिशिएंटली काम ख़त्म कर लेते हैं और कम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो बाकी जो कि नहीं यूज़ करते टू डू लिस्ट को या जो नोट वगैरह होते हैं उनको। अपना ख्याल रखना भी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ जस्ट लाइक अ मशीन जो एक काफ़ी देर तक काम कर रही है वर्किंग आवर्स में, तो उसके बाद वो भी गर्म हो जाती है और उससे हम वो आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो कि एक फ्रेश मशीन से हम कर सकते हैं। ओके, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें यही होता है कि पोस्टीरिटीज और प्रायोरिटीज, आप डिले क्या चीज़ कर सकते हैं, आप ये देखें कि आप क्या चीज़ डिले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स आपने देखना है या आपकी टू डू लिस्ट में ये डिले किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने कोई असाइनमेंट करनी है, आपने कोई स्किल सीखनी है, आपने कोई आपने आर्टिकल लिखना है, तो वो आप उसको डिले नहीं कर सकते। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एक्नॉलेज व्हाट्स होल्डिंग यू बैक देन ओवरकम इट। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में वो यही है कि आपको रोक क्या रहा है आगे बढ़ने से। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती,
तो लीडर्स वही होते हैं जो बगैर किसी की सुपरविजन के कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी जगह वो होते हैं जो कहते हैं कि यार जब तक मैं सॉफ्टवेयर हाउस नहीं जाऊंगा ना तो मैं ये स्किल नहीं सीख सकूंगा। वहाँ पे शायद मुझे कोई ऐसी होता है कि जैसे वहाँ आपको किसी ने घोल के तो नहीं पिलाना ना, सीखना तो आपने खुद होता है। वो आपका इंटेलेक्ट है कि आप किस तरह चीज़ों को गेट करते हैं, किस तरह चीज़ों को सीखते हैं। तो टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आप सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो अपने चीज़ों को ना स्प्लिट अप आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को भी स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता। जैसे आप कोई अगर फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक वो मेंटल स्टेट ऑफ फ्लो बना हुआ है, तो उसमें अगर आप एक ब्रेक ले लेते हैं तो वो सारा फ्लो आपका ख़त्म हो जाता है। वैसे एक बुक है लिमिटलेस, एक थ्योरी है कि हम जब चीज़ों को चंक्स में ब्रेक कर देते हैं ना तो वो ज़्यादा इजी होता है हमें याद करने में। और इसकी एक एग्जांपल है कि आप फॉर एग्जांपल किसी इवेंट पे जाते हैं, वहाँ पे आप 30 लोगों से मिलें, तो आपने सबसे नाम पूछा, सबका इंट्रोडक्शन लिया, तो आपको सबका नाम ऑब्वियसली याद नहीं रहना, लेकिन आपको सिर्फ उनका नाम याद रहेगा जिनका आपने शुरू में पूछा होगा, या वो 5 है जिनका आपने एंड पे पूछा होगा। तो ये मतलब इस तरह फायदा होता है हमें चीज़ों को स्प्लिट करने का। Okay, so concluding thoughts, defeat procrastination by figuring out who you are and what you want to achieve. आपको अचीव क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, अपनी limitations को confront करें, और plan your time and eat your frogs. Okay, so eat your frogs का मतलब ये होता है कि eating frog is a most difficult task for obviously everyone. तो ये इसीलिए ये एक बात कही जाती है कि वेरी स्टार्ट ऑफ द डे, जब आपका दिन सुबह सुबह आप शुरू हुआ है, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है ना, वो करना है ईट योर फ्रॉग, यानी कि सबसे मुश्किल काम है ना आपके दिन का जो आपने लिखा हुआ है, वो आपने सबसे पहले कर लेना है। तो इस तरह इस थ्योरी के मुताबिक आप जो है ना सबसे ज़्यादा यू विल गेट आउट ऑफ you will get most out of your life. Okay, so keep to do list बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको बनाया करें, लिखा करें, उससे एक ट्रैक रहता है, एक फ्लो रहता है कि आपने क्या कर लिया, आपने क्या करना था और आपने क्या करना है। ये ऑब्वियसली माय फेवरेट कोटेशन इज मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। जब तक आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका सर्कल अच्छा है, अगर आप इस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं जहाँ पे लर्निंग को मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाती है, आपको भी पता नहीं लगेगा। आप कुछ अरसे बाद आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि आप एक कंपटीशन में आ जाते हैं। तो मोटिवेशन से ज़्यादा, मोटिवेशन वीडियो से ज़्यादा थोड़ा इन्वायरमेंट अपना बेहतर करें और इन्वायरमेंट को ज़्यादा बेहतर करने पे फोकस करें। ओके, सो इफ यू गॉट एनी फीडबैक। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि प्रोग्रामिंग जिसने करनी हो और लॉजिक मेकिंग अगर उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो क्या करे। देखें, रीडिंग और राइटिंग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं। ये सिर्फ उसने नहीं करनी होती जो कंटेंट राइटिंग कर रहा है, सिर्फ उसने नहीं करनी जो कोई अपना करियर परसू करना चाहता है इंग्लिश में या किसी भी रेलिवेंट फील्ड में। ये सबके लिए ज़रूरी है, इससे आपकी जो है ना पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो स्टीवन पिंकर एक ऑथर हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इज़ अ सुपर स्टार इंटेलेक्ट, और उनकी बुक है एक रैशनैलिटी। वो आप पढ़ेंगे ना तो आपके थॉट्स इतनी क्लियर हो जाएंगी। उनकी और भी बुक्स हैं, वो आप सारी पढ़ें, बहुत अच्छी बुक्स हैं उनकी। लिमिटलेस एक बहुत अच्छी बुक है, उससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा फोकस किस तरह कर सकेंगे चीज़ों पे। वो इस तरह उन्होंने इस तरह के टॉपिक्स पे बात की हुई है लिमिटलेस में। तो कोई भी आपका फीडबैक है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ऑब्वियसली, अब काफ़ी टाइम हो गया सेशन का भी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन है मेरा आदिल हमजा के नाम से, आप मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी आप स्किल ऐसी समझते हैं कि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें, हमारा जो GDS IUB चैप्टर है वो इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप हमें क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू, दैट वाज इट। Thank ओके you so आयशा। much, sir. So that's the end of this event. Thank you to all the speakers जिन्होंने time निकाला. And Allah Hafiz, guys. Thank you so much for joining us.